شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، یقین جانو کہ وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی خالد صاحب آج کے ایجنڈے کے حوالے سے آپ کو بریف کریں گے۔ شکریہ سر۔ آج کے ایجنڈے پر 4 پریویلیج موشنز ہیں۔ پہلی پریویلیج موشن ہے 10/2024، یہ جناب منصور اعظم MP PP 72 کی جانب سے ہے۔ دوسری پریویلیج موشن 39 ہے، اس کے 4 موورز ہیں، مسٹر عمران اکرم صاحب ہیں، احمد اقبال چودھری صاحب ہیں، شوکت راجہ صاحب ہیں اور سردار منصب علی ڈوگر ہیں۔ نہیں 6 ہیں، 6 میاں شاہد حسین اور رانا عبد المنان۔ اس میں نام نہیں، اچھا نوٹس میں۔ اس کے بعد تیسری پریویلیج موشن ہے 23، اس کے موور رئیس نبیل صاحب ہیں، یہ پہلے بھی ایجنڈے پہ آ چکی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پریویلیج موشن ہے 28/24، مسٹر محمد عدنان ڈوگر صاحب ہیں، یہ بھی پہلی دفعہ ایجنڈے پہ آئی ہے اس جی بہت شکریہ۔ اب ہم پہلے ذرا لیتے ہیں طریق استحقاق نمبر 39۔ عمران اکرم صاحب، میاں شاہد حسین صاحب، شوکت راجہ صاحب، منصب علی ڈوگر صاحب، رانا عبد المنان صاحب، ان میں سے کتنے دوست موجود ہیں ذرا؟ احمد اقبال تو نہیں ہیں، عمران اکرم صاحب ہیں، میاں شاہد صاحب ہیں، شوکت صاحب ہیں، رانا منان صاحب ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، کون جو متعلقہ جن کے خلاف آئی ہے رائے منظور حسین MD پنجاب ہاؤسنگ فاؤنڈیشن ڈپارٹمنٹ، ان کو ذرا بلا لیا جائے۔ اور سیکریٹریٹ کی نمائندگی کے لیے مجھے اطلاع آئی تھی کہ ویسے تو ACS نے آنا تھا، لیکن چونکہ آج کل چیف سیکرٹری آپ کے علم میں ہوگا کہ 10 دن کی چھٹی پہ ہیں، تو ان کے پاس چیف سیکرٹری کا چارج ہے، اور وہ انہوں نے انفارم کیا تھا کہ ان کی 2-3 بڑی اہم میٹنگز ہیں، تو اگلی میٹنگ میں وہ ضرور تشریف لائیں گے، لیکن وہ اپنا نمائندہ اس پروسیڈنگ کو نوٹ کرنے کے لیے وہ یہاں پہ مجھے کہا تھا کہ ان کا کوئی نمائندہ آ جائے گا۔ کوئی SNGAD یا چیف سیکرٹری آفس سے کوئی نمائندہ ہے تو ذرا بتا دیا جائے۔ وہ اس اسکواڈ آئے، ہاں کدھر ہیں؟ MD صاحب کے پاس ہی بیٹھے وہ۔ ہاں ان کو بھی بلا لیں، ان کو بھی بلا لیں، ٹھیک ہے۔ اس کی آج ہی ابتدا کرتے ہیں جی۔ غیر متعلقہ کوئی بھی بندہ ہے تو باہر تشریف نہیں، یہ تو اپنا سٹاف ہے اور کوئی ہے نہیں، جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے نا رانا صاحب، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی ابتدا کسی اور دن نہیں، آج ہی کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا بندہ جو کوئی غیر متعلقہ ہے تو اس کو ذرا پوچھ لیں۔ آپ کن کی طرف سے ہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ وہ کیڑے ممبر کیڑے پینٹ کوٹر، اچھا پتہ نہیں، کوئی بات نہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ تحریک استحقاق نمبر 39 ہے، اور اس کے موور ہیں جناب عمران اکرم صاحب، جناب احمد اقبال چودھری صاحب، میاں شاہد حسین صاحب، جناب شوکت راجہ صاحب، سردار منصب علی ڈوگر صاحب، رانا عبد المنان ساجد صاحب، یہ سارے آنریبل پارلیمنٹیرین ہیں۔ ان کی طرف سے یہ تحریک استحقاق آئی ہے۔ جن کے خلاف آئی ذرا اپنا تعارف کرا دیں جی۔ جی میرا نام رائے منظور حسین ہے، میں سیکریٹری ہوں گورنمنٹ آف پنجاب کا۔ آج کل میں پنجاب گورنمنٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن میں ایز اے MD پوسٹنگ ہے جی۔
اور آپ جی آپ اپنا سر ڈاکٹر محمد نعیم سر آئی ایم اے ایس کوآرڈینیشن ٹو اے سی ایس. ہاں ٹھیک ہے, وہ مجھے میسج مل گیا تھا کہ ان کا سر. اچھا جی, ہمارا جو رولز کے تحت جس طرح سے ہم اس پروسیڈنگ کو چلاتے ہیں وہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو جو یہ موور ہیں ان میں سے آپ اس کو پڑھیں گے عمران اکرم صاحب. یہ ذرا جو آپ نے تحریک استحقاق جمع کرائی ہے اس کو ذرا ہاؤس کے سامنے, اس کمیٹی کے سامنے پڑھ دیں ذرا. جی بہت شکریہ چیئرمین صاحب. میں حال ہی میں وقوع پذیر ہونے والے ایک اہم فوری مسئلہ کو زیر بحث لانے کے لیے تحریک استحقاق پیش کرتا ہوں جو اسمبلی کی فوری دخل اندازی کا متقاضی ہے. معاملہ یہ ہے کہ آج مورخہ 4 اکتوبر 2024 کو اسٹینڈنگ کمیٹی آن ایس اینڈ جی اے ڈی کی میٹنگ میں جناب امجد علی جاوید ایم پی اے پی پی 121 کی طریق التواء کار نمبر 119/24 ایجنڈا میں شامل تھی. میٹنگ میں رائے منظور حسین ایم ڈی پنجاب ہاؤسنگ فاؤنڈیشن ڈپارٹمنٹ نے شرکت کی. میٹنگ کے بعد جناب عمران اکرم ایم پی اے پی پی 195 چیئرمین قائمہ کمیٹی نے ایم ڈی موصوف آفیسر سے دریافت کیا کہ آپ بہت مصروف ہوتے ہیں, معزز اراکین اسمبلی کے فون نہیں سنتے, جس پر موصوف آفیسر نے انتہائی متکبرانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا ہمیں تو جرنیلوں کے بھی فون آتے ہیں, ہم نہیں سنتے. مجھے کیا معلوم کہ فون پہ کون بول رہا ہے, ہم مصروف ہوتے ہیں. جب ان سے کمیٹی کے دیگر معزز اراکین نے کہا جب ایک رکن اسمبلی آپ کو اپنا تعارف کروا دیتا ہے تو تب آپ کو اس معزز رکن اسمبلی کا فون اٹینڈ کر لینا چاہیے. اس پر موصوف آفیسر نے مزید تلخ لہجہ میں جواب دیا میں کسی ایرے گیرے اللہ رتا نامی ایم پی اے کو جانتا ہی نہیں اور نہ جاننا چاہتا ہوں, میں کسی کا پابند نہیں. جناب اسپیکر, موصوف آفیسر نے میٹنگ شروع کرنے سے لے کر میٹنگ ختم ہونے تک غیر سنجیدہ رویے کا مظاہرات جاری رکھا. اس کے ناروا سلوک اور متکبرانہ لہجہ کی وجہ سے مجلس قائمہ کے اراکین اسمبلی کا استحقاق مجروح ہوا ہے. مزید انہوں نے اپنی ناقص کارکردگی اور عدم دلچسپی کا ملبہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور چیف سیکرٹری پر ڈالتے رہے. جناب والا, ہم عوامی نمائندے ہیں, ہمیں استحقاقات ایکٹ 1972 کے سیکشن 15 کے تحت بحیثیت منتخب ایم پی اے کا استحقاق تفویض کیا گیا تاکہ ہم عوامی مسائل حل کر سکیں, لیکن موصوف آفیسر نے ہمارے استحقاق کی کوئی پرواہ نہیں جو ہمیں آئین اور قانون کے تحت وضع کردہ قواعد کے تحت استحقاق کا حق دیا گیا ہے. جناب اسپیکر, موصوف آفیسر نے قاعدہ 68 قواعد انضباط کارسوائی اسمبلی 1993 سیکشن 15 استحقاقات ایکٹ 1972 کے تحت ہمیں دیے گئے حق کے استحقاق کو پامال کیا ہے. موصوف آفیسر نے توہین آمیز رویہ اختیار کیا. اس طرح کمیٹی کے تمام ٹھیک ہے تمام اراکین کا استحقاق مجروح ہے. نہیں اس میں جی اپنا اب آپ کی سٹیٹمنٹ اس پہ چاہیے ہوگی جو تحریک استحقاق ہے, تو یہ حلف نامہ دیں, اس کے بعد یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ یہ میں پڑھ دوں جی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو. چیئرز اور لگوا دیں.
जी राय मंजूर सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैं सबसे पहले तो ये गुजारिश करूँगा कि ये सारी जो तहरीक इस्तेकाक है, इसका निचोड़ ये है कि टेलीफोन कॉल्स मैं अटेंड नहीं करता और मुझे कहा गया कि टेलीफोन कॉल्स आप अटेंड करें, और मैंने कहा जी मैं तो किसी जर्नल की भी अटेंड नहीं करता। अच्छा, मेरी सर 32 साल की नौकरी हो चुकी है, 32 ईयर्स, और मैं मुकाबले के इम्तिहान के ज़रिए एज ए मैजिस्ट्रेट और EAC जो पहले हमारे होते थे PCS ऑफिसर्स, वो मैं भर्ती हुआ था फर्स्ट टाइम 1992 में, और ट्रेनिंग हमारी निकाल के राय साहब माजरत एक तो ये है कि पहले कभी आए हैं प्रिविलेज कमेटी में? नहीं सर, मेरा फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम है, यही मेरा पॉइंट था। ये हम प्रोफाइल नहीं सुनते, पहली बात तो ये ना, हम किसी ऑफिसर का प्रोफाइल नहीं सुनते कि वो हमारे पास जो CSS करके आते हैं वो अगर अपना प्रोफाइल शुरू हो जाए तो हमारा टाइम उसमें चला जाएगा ना। आप हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम ऑफिसर हैं, मैं हाउस में भी ये कहता हूँ, यानी हमें कोई हम आपके बारे में किसी किस्म का कोई बाइस नहीं है, ठीक है जी। सही। आप सीधी बात पे आएँ, प्रोफाइल छोड़ दें, आप कहाँ रहे हैं, क्या किया है, उसको छोड़ दें। मैं सर सिर्फ एक फिक्रे की मुझे इजाज़त दें, एक फिक्रा सर, क्योंकि बात मैंने कर ली है सर, वो गुजारिश सिर्फ ये है कि मेरी 32 साल की नौकरी में ये फर्स्ट टाइम है, यानी एक होता ना कि फर्स्ट ऑफेंडर है या बंदे का रोज़ ही इस तरह का कोई लगा हुआ, यानी मेरा फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस है इस तरह की तरीक और इस तरह यहाँ पे हाज़िरी। तो आखिर 32 साल मैंने नौकरी की है। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि उसमें सारे पार्लियामेंटेरियंस के साथ ही बहुत सारे हमारे ज़ाती ताल्लुक़ वाले लोग यहाँ भी बैठे हैं। सर हुआ उस दिन ये है कि ये 4 अक्टूबर को हमारी शायद मीटिंग थी, लास्ट वाली सर, महीना पहले तकरीबन। जो चेयरपर्सन साहब थे मिस्टर इमरान अकरम साहब, अच्छा, उन्होंने, हमारी बातचीत ख़त्म हो गई, जो डेटा हमसे मांगा गया वो हमने दिया, उसके बाद कुछ फर्दर चीज़ें थी वो हमने पेश की। अच्छा, हमें उससे पहले सर एक कमेटी में डायरेक्शन थी कि भाई एक आप फौरी तौर पे समरी भेजें कि हाउसिंग फाउंडेशन का कोटा रखा जाए कोऑपरेटिव में, वो समरी भी हमने, मतलब जितनी चीज़ें हमें कही गई सब की हमने तामील की, और मीटिंग सर हमारी खुश असलूबी के साथ ख़त्म हो गई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं सर इधर करके बैठा हुआ था तकरीबन मिड में, तो मैंने आउट ऑफ कर्टसी, यानी मुझे बहुत अच्छा लगा उनका कंडक्ट करना, बहुत ही बैलेंस से उन्होंने, मतलब 1-2 दफ़ा किसी ने कोई ऐसी बात की सख्त, तो उन्होंने उसको भी सारा बहुत किया। तो मैं उठ के यहाँ से ऐसे जाने की बजाय मैं उनसे जाके मिला और मैंने सलाम लिया। मैं कहा सर थैंक यू वेरी मच, मतलब खुदा हाफिज़ होने की ये बात की बात है। अच्छा, वो एक MPA साहब थे, उन्होंने ऐसे ही, मतलब अब वो 3-4-5 बंदे आपकी जगह पे ऐसे खड़े हो गए, तो उन्होंने कहा जी कि आप कॉल्स अटेंड नहीं करते, और मैंने कहा सर मैं हर बंदे की कॉल अटेंड करता हूँ जी। सर जब आम की करेंगे तो फिर खास की तो करेंगे ना। अच्छा, मैंने कहा सर सिर्फ ये है कि 2 तरीक़ेकार हैं कि देखें हमें किसी अननोन नंबर से कॉल आती है, कोई बंदा कोई भी तारुफ करा देता है, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि वो बंदा वाकई ही वो है या कोई और है। अब देखिए सर, आए रोज़ इम्पर्सोनेशन, और लोग कोई फौजी बना हुआ है, कोई पुलिस वाला बना हुआ है, कोई पार्लियामेंटेरियन बना हुआ है। तो मैंने कहा जी देखिए उसके 2 तरीक़ेकार हैं, या तो ये है कि आपके पास मेरा नंबर सेव हो, हर सूरत में आपकी कॉल अटेंड होगी या आपको कॉल बैक आएगी, या ये है कि फिर जो मुतलका डिप्टी सेक्रेटरी हैं CM ऑफिस में, उनके थ्रू हमें लोग करते हैं। अभी ये लेटेस्ट सर ये चौधरी मुदस्सर कयूम नारा साहब हैं, मैंने गुजरांवाला से, उन्होंने मुझे DS के ज़रिए कॉल करवाई, और DS जो मुतलका गुजरांवाला डिवीजन का है CM ऑफिस में, उन्होंने कहा जी कि नारा साहब आपसे बात करेंगे इस नंबर से, खैर उनसे वैसे ही बिल्कुल भाइयों वाला ताल्लुक है। तो उन्होंने फिर कहा कि जी मुझे तो पता नहीं था कि इधर आप हैं। तो मैंने कहा जी, या तीसरा फिर फोरम है कि आप असम्बली से हमें को बंदा कह जी कि ये MPA साहब कॉल करेंगे। अच्छा, उन्होंने कहा जी ये तो कोई बात ना हुई। मैंने कहा सर ये बड़ी जेन्युइन गुजारिश है, भाई एक बंदा MPA का तारुफ कराता है मिनिस्टर का किसी भी सीट का, तो उनका कोई हमें पता हो ना कि ये यही शख्स है, तो हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं। फिर मैंने सर इनको अर्ज़ किया, जो बात फ़िक्रा इन्होंने गलत आगे समझा, वो सर ये था कि मैंने अर्ज़ किया, मैंने कहा जी एक बंदे ने मुझे कॉल की, मेरे पास नंबर सेम है सर, मैं जो बातें कर रहा हूँ सर सब मैं आपको प्रूफ देने को तैयार हूँ। मैं सर कोई 2 साल पहले की बात है, मैं था DG एंटी करप्शन, मुझे कॉल आती, मैसेज आता है कि जनरल शुजा पाशा हेयर, तो कॉलिंग यू शॉर्टली। अच्छा, थोड़ी देर बाद मुझे कॉल आती है, वीडियो कॉल, तो वो कहते हैं जी मैं खाना काबा के सामने खड़ा हूँ,
تو رائے صاحب پہلے تو میں آپ کو زیارت کراتا ہوں. اچھا وہ خانہ کعبہ کی زیارت ہو گئی. اچھا اس کے بعد مجھے انہوں نے کوئی 2-4 کام میسج کیے, وہ جائز جو ہونے والے تھے میں نے کر دیے. پھر مجھے انہوں نے مظفر گڑھ کے ایک پٹواری کا کہا کہ اس کی ٹرانسفر کر دیں, تو لازمی کرانی ہے. مجھے شک سا پڑا کہ بھئی یہ کوئی بات بنتی نہیں ہے. پھر میں نے ویریفائی کیا آرمی چینل سے, تو انہوں نے کہا جی یہ جھوٹا نمبر ہے, یہ جنرل شجاع پاشا نہیں ہے. میرے پاس سر وہ نمبر بھی ہے, ان کی پوری کارسپونڈنس بھی ہے. اچھا اس کے بعد سر ہمیں ایک اور کال آئی, یہ کپل آف ڈیز بیک, 2024 میں سر ہمیں کال آئی ہے, ہمارے پاس ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے. اس بندے نے کہا جی جنرل حامد حسن صاحب بات کریں گے, اور جو بندہ بات کر رہا تھا اس کا نام تھا مشتاق. اس نے کہا جی میں پی اے ہوں, موبائل نمبر سے کال آتی ہے, موبائل نمبر بھی سر میرے پاس نوٹڈ ہے. تو ہم نے انہیں بھی یہی کہا, میں نے پی اے کو کہا جی انہیں کہا جی سرکاری نمبر سے کال کریں, ہمیں پتہ لگے نا کہ یہ جنرل صاحب ہیں. اچھا اس کے بعد وہ غائب ہو گئے. اب تازہ ترین جو ہے نا سر, یہ کوئی 1 ہفتہ پرانی, وہ ہمیں کال آتی ہے 99233300 سے. وہ کہتے ہیں جی میں جاتی عمرہ سے بات کر رہا ہوں, اور ایک صاحب ہیں سر عزیز عباس شریف, کہ یہ سی ایم کے کزن ہیں اور وہ بات کریں گے. ان کی میرے سے بات ہوئی, انہوں نے مجھے ایک سفارش کی سیالکوٹ میں ایک ہماری اسکیم ہے اس کے بارے میں. تو میں نے سر لکھی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک کتاب. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا جی ہم اس کا کمپٹیشن کراتے ہیں, تو آپ میرا ایک کام یہ کر دیں کہ سی ایم صاحبہ سے کہہ کہ یہ میسیج صرف چلا جائے ہر کلاس روم تک, ادارے تک, کہ بھئی وہ کتاب لوگ پڑھ لیں اور ہم اس کا مقابلہ کراتے ہیں, انعام دیتے ہیں. صرف یہ ہے کہ پیغام ظاہر ان کے تھرو پہنچ جائے گا. انہوں نے کہا جی مسئلہ ہی کوئی نہیں. ابھی سر کوئی 8-9 دن سے 10 دن سے میں ان کو ڈھونڈ رہا ہوں, وہ مل نہیں رہے. تو ابھی پھر سی ایم آفس میں ہم نے آج کل میں رابطہ کرنا ہے کہ یہ جینون ہے کہ نہیں ہے. یہ بات سر میں نے جلدی ادھر 4-5-6 لوگوں کے کھڑے یہ بات کی. تو ابھی بھی سر میری صرف یہ گزارش ہے کہ اس کے سر کوئی اگر میکینزم بن جائے, یا تو سر جو ٹوٹل پارلیمنٹیرینز ہیں سر ان کا فون نمبر سرکولیٹ ہمیں کوئی ہو جائے, ہم سارے نمبر فیڈ کر لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے سر. 370-71 لوگ ہیں, تو میرے تو ہزاروں نمبر آلریڈی فیڈ ہے. کوئی سر میرا ایک میسج کسی بھی شخص کا, میرے 14,000 سپر کانٹیکٹ ہیں سر فون میں, ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ اس کا جواب نہ ملے. کافی دوست میرے پاس آتے رہتے ہیں, ملتے رہتے ہیں جہاں میں رہا ہوں. اس سے پہلے بھی سر میری ادھر پنجاب کی سروس ہے, میرا پنجاب سے ہی پی ایم ایس سے تعلق ہے. تو یہ سر میری اس وقت بھی گزارش تھی اور ابھی بھی, اور یہ بالکل ایسے کھڑے سر بات ہوئی ہے. اور یہ میں سر ابھی اتنا ہی ہے, اگر فردر سر آپ کچھ فرمائیں گے. باقی سر کچھ لوگ میرے پاس آئے ہیں پارلیمنٹیرین, اگر کہیں گے تو میں سر آپ کو نام بتا دیتا ہوں, آپ ان سے پوچھ لیں کہ میرا ان کے ساتھ کیسے رویہ تھا, کیسے ہم نے ان کو ریسیو کیا, کیسے ریفریشمنٹ کرائی, کیسے ان کی عزت کی, کیسے ساتھ والوں کو کہتے ہیں. تو سر میں 4-5 نام بتا دوں آپ. جی شکریہ سر. اپنا کوئی دوست ممبر کوئی چیئر سے اجازت لے کے. میرا سر اس میں سیکرٹری صاحب سے یہ کویسچن ہوگا کہ یہ بڑی تشویشناک چیز ہے کہ سیکرٹری صاحب کو مسلسل ایسی کالز آتی ہیں, اور بقول ان کے کہ جو شخص اپنا تعارف کسی اور شخص کے نام سے کرواتا ہے حقیقت میں وہ کوئی اور نکلتا ہے. تو سر اس میں سیکرٹری صاحب آپ نے یہ ویریفائی کیا اور آپ نے اس کی جڑ تک گئے ہیں کہ وہ بندے کون ہیں جو آپ کو اس طرح سے اسٹرینجر بن کے کالز کرتے ہیں, اور آخر ان کے خلاف کوئی کارروائی آپ نے کیا یا نہیں اب تک, یہ پوچھنا ہے. اچھا سر یہ ہے کہ فرینکلی اب یہ جنرل شجاع پاشا والا جو بھی تھا وہ بھی میں نے کہا جب پٹواری صاحب پہ پہنچا تو پھر مجھے شک پڑا کہ یہ نہیں ہے. تو پھر میں نے آئی ایس آئی والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی وہ بندہ تو نہیں ہے. اب اس کا نمبر سعودیہ کا ہے, تو میں نے کہا جی یہ کتنا ڈھونڈے گی گورنمنٹ, کیا کرے گی. اور یہ ہر آفیسر کے ساتھ ہے, اس طرح میرے ساتھ نہیں ہے, یہ ہر افسر کے ساتھ ہے. اور پھر یہ ہے کہ کوئی طریقے سے لوگ ٹیکل کر لیتے ہیں, کسی نے ہر روز مطلب ایک آدھی کال ایسے ہمیں آتی ہے جس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا. پھر جب ہم کہتے ہیں اچھا ایک دن جنرل صاحب کی ایک اور کال آ گئی, موٹر وے پہ ہیں جی, پی ایس او نے کہا بات کریں گے, سیکرٹری ڈیفنس بات کریں گے. یہ ہمارے پاس تو سر تانتا بندہ ہوا ہے, اور ہر افسر کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ صرف نہیں ہے. سر میری گزارش سر صرف یہ ہے سر, ہمیں سر یہ سارے معزز ممبران کے سر نمبر مل جائیں اسمبلی کی طرف سے, وہ سر فیڈ کر لیتے ہیں سر. 101% یا کال اٹینڈ ہوگی یا پہلی فرصت میں کال بیک ہوگی. اس میں بٹی صاحب اور آپ جو موور ہیں کوئی بات, چونکہ انہوں نے پورا واقعہ اپنا موقف رکھا ہے, تو اس میں جناب چیئرمین آپ کی اجازت سے جو مین اس میں جو ہمیں جو فیل ہوا, پوری کمیٹی اس وقت کھڑی تھی جن کے سامنے یہ گفتگو ہوئی, اس میں سر جو ورڈ تھے میں کسی ایرے گہرے اللہ رتا نامی
MPA का फ़ोन नहीं सुनता। तो जो इम्प्रेशन क्रिएट था उस बात का कि MPAs और अल्लाह रिता नामी MPAs, इसका मतलब ये था कि MPAs जो उनको डिग्रेड किया गया है, डिफेम किया गया है, तो वो हमारी पूरी कमेटी को ये बात बहुत ज़्यादा फील हुई। और सेकेंडली ड्यूरिंग प्रोसीडिंग ऑफ द कमेटी सर मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब हमने इनसे ये सवाल किया कि जी आप पिछले कोई 14 या 15 साल से ये अदारा चल रहा है, ये काम कर रहा है अपना, और अभी तक आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट नहीं हुए, लोगों के कोई बिलियंस ऑफ रुपीज़ इसमें पड़े हुए हैं, तो क्या वजह है, क्या रीज़न है? तो उन्होंने ये फरमाया कि जी यहाँ इस पर कोई तवज्जो ही नहीं करता, ना वज़ीर आला की तवज्जो है और ना ही चीफ सेक्रेटरी की तवज्जो है। तो ये बात भी हमें फ़ील हुई कि क्या हमारी वज़ीर आला जो सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ऑफिस में काम करती है, तो क्या ये किस तरह कह रहे हैं कि उनकी तवज्जो नहीं है? उनकी तवज्जो तो हर तरफ है। तो ये बात हमें बहुत ज़्यादा फील हुई। तो इस किस्म का इनका लहजा, इनका रवैया, जो इनका अंदाज़ था वो अनप्रोफेशनल था सर, टोटली। ये मैं आपकी गुजारिश जी भट्टी साहब, आप कोई इसमें ऐड करना चाहें? सर गुजारिश है कि मेरे साथ एक और कोलीग थे, मैं उनसे बात कर रहा था। जो चेयरमैन साहब ने इन्हें सवाल किया वो मैंने नहीं सुना, जो मौसूफ का जवाब था वो इस लहजे में था कि मैं समझता हूँ कि अगर शायद हसन भट्टी साहब की जगह मैं होता तो शायद फिज़िकली हमारा कोई एक्सचेंज हो जाता। जो इनका स्टाइल था और जो इनका अंदाज़ था, इतनी तौहीन अमेज़ स्टाइल मैंने ज़िंदगी में किसी ऑफिसर का नहीं देखा जो चेयरमैन साहब के साथ इन्होंने किया। और उस वक्त मेरे आगे शाहिद हसन भट्टी साहब थे। मैंने बाद में पूछा चेयरमैन साहब से, मैंने कहा आपने क्या सवाल किया था? तो इन्होंने कहा जी कि मैंने तो उन्हें ये कहा था कि भाई MPAs आपको कॉल करते हैं, मेहरबानी करके उनकी कॉल अटेंड कर लीजिए। और जो इनका जवाब था, इनका मुझे जर्नैलों के फ़ोन आते हैं, कोई अल्लाह देता ऐरा गैरा मैंने फ़ोन करता, फिर मैं इतना फारग नहीं कि मैं सुन। MNA भी रहे हैं, बड़े सीनियर हैं आप, अब आप MPA हैं, तो क्या वाक़या हुआ? जी बिल्कुल, जो इमरान अकरम साहब ने आपको बयान किया है ना सारा, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। कुछ एक चीज़ हम इसमें खुद जानबूझ कर ना तहरीर में नहीं लाए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आधी बताऊँगा। इन्होंने ये भी कहा कि मेरा घर है ज़मान पार्क में, फलां फलां का मैं हमसाया हूँ, यानी इस किस्म की इन्होंने बातें हमारे साथ की। तो बड़े हैरान को ना हम सारी अपना जो लोग थे ना हैरान रह गए, ये कैसा रवैया है हमारे साथ, कैसी ये बात कर रहे हैं। जी सर अक्सर इसमें मैं अच्छी गल हम सारे खान साहब दे अच्छी गल है जनाब चेयरमैन, इसमें गुजारिश है कि राय साहब ने जो तजवीज़ दी है, आई डोंट नो कि आप भी माशाल्लाह 2002 से आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, नेवर एवर कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि MPA सारे इनको नंबर नोट कराएं और कभी MPA 2-3 को फेक बता दें कि वो MPA आए आपके पास। इस तरह नहीं होता राय साहब। ये एटीट्यूड जो है ये ब्यूरोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक नहीं है आपका। ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल है कि जी आपको सारे नंबर दें तो आप करेंगे, अगर नंबर नहीं होगा तो आप रिप्लाई नहीं करेंगे। हमारे पास इस तरह तो हज़ारों हमारे फ़ोन 24 आवर चल रहे होते हैं। तो आप बजाय इसको अपोलोजाइज करने के और आप कह रहे हैं कि जी पहले सारे नंबर एक नया मैकेनिज़्म बना के दें आपके कहने पे, तो आप एक IT एक्सपर्ट रख के हमें दे देंगे जो मैकेनिज़्म आप चाहते हैं। इस तरह नहीं होता सर। ये एटीट्यूड जो मैं समझता हूँ कि जो हमारे मूवर कह रहे हैं वो तो अब भी उनका वही एटीट्यूड है। और किसी ने बात करनी है, वरना मैंने कुछ मेरी ऑब्जर्वेशन है। मैंने चेयरमैन साहब जी थैंक यू वेरी मच चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब, जो अभी राय साहब ने अपने जवाब में फरमाया है, ये मेरे ख्याल में कोई जवाब बनता नहीं है। अभी जो राना साहब भी फरमा रहे हैं, हम सब के फ़ोन खुले हैं, हर किसी के, हम पब्लिक के साथ हमारा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, हमें भी ऐसी एनोनिमस कॉल्स आती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पब्लिक से या अपने चेयरमैन से या उनसे पूछ रहे हैं कि हमें कॉल्स आप अपने नंबर सेव करवाएं तब हम आपसे बात करेंगे, या इस तरह का एटीट्यूड दिखाएं। ये पब्लिक सर्वेंट हैं और यहाँ बात हो रही है MPAs की प्रिविलेज की।
एक पब्लिक सर्वेंट होने के नाते इनका फ़र्ज़ बनता है कि पब्लिक रैप की ये इज़्ज़त करें, और ये मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसा जवाब है कि इस जवाब में ये आगे से इतनी बड़ी इन्होंने तौजीह पेश की है कि मुझे फ़लाँ जनरल ने फ़ोन किया, फ़लाँ जनरल ने फ़ोन किया है। मेरे ख्याल में ये इस मीटिंग का इस तरह का जवाब देना इनका बनता नहीं है। सर थैंक यू वेरी मच। सर राय मंजूर साहब को मैं BPS 17 में इन्होंने पिंडी में सर्व किया, मैं जानता हूँ इनके लबो लहजा थोड़ा सा यकीनन वो होता है, ही इज़ अ गुड ऑफिसर। इनके लहजे को मैं मंजूर भाई आपसे भी ये गुजारिश करूँगा कि जो मुंतखब पार्लियामेंटेरियंस हैं, आप खुद PMS की यूनियन चलाते रहे, आपने सफ़र भी किया, हमारे पर भी वर्जन होता है, पीछे लोग होते हैं उनके लिए कॉल कर रहे होते हैं, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं, इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है, और ये हम आपके भाई बैठे हैं, दोस्त बैठे, तो जो हो लॉजिक आपके पास भी बहुत होंगे और ये सारे भी लॉजिक वाले लोग बैठे हैं, तो उसको वाइंड अप करने के लिए मैं समझता हूँ कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उसको आप ख़त्म करें। इनको कहें कि इन फ्यूचर आप लोग इनके साथ, आप भाई हैं हमारे, हमारी कोई किसी सरकारी अफसर से लड़ाई नहीं है, लेकिन रवैया जो है थोड़ा सा, आप हमारा कोई ज़ाती काम भी आपको, मैं 10 बार आपके पास आया हूँ, इसलिए मेरी गुजारिश है उस पुराने ताल्लुक की बिना पे BPS 17 में आपने पिंडी में सर्व किया, भट्टी साहब ये हमारे सब रजिस्ट्रार पिंडी रहे, तो मेरी ये गुजारिश होगी कि उस चीज़ को ज़रा सा इस कमेटी को सेटिस्फाई कर दें कि इन फ्यूचर जो है वो इस चीज़ पे, जो इंसान, हमसे भी गलती हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, कोई भी गलती से मुबर्रा नहीं है। उन्होंने शुरू इससे किया कि जो हुआ है वो ठीक हुआ है, और ये रूटीन दी है उन्होंने कि जिस तरह होता है। सर मैं वही उनको बाबर कराने की सर इसमें एक जो मसला है ना, ये जो फ़ोन पर जो ऐसा हो जाता है, तो हमारे 8-10 MPs ऐसे हैं जो हमारे, क्योंकि मैं चीफ वेपू मुझे बता चुके हैं, उनके साथ भी ऐसे हो चुका है कि 6-6 लाख रुपया उनसे ले लिया फ्रॉड के तौर पर कि शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए चाहिए, उधर चाहिए, तो बंदों के साथ हमारे भी फ्रॉड हो गए। ये फ़ोन पर ऐसा होता तो है, लेकिन क्योंकि ये 19वें 20वें ग्रेड में होंगे तो इनको जो चाहिए कि जैसे पहचान लिया कि ये जाली जनरल बना हुआ है, तो MPA भी जाली, ये जल्दी पहचान लेंगे। तो बहरहाल सर मैं गुजारिश करूं, मैं पहले भी रहा हूं प्रिविलेज कमेटी का मेंबर, ये इसमें तो अभी हम इस जगह पे रुके हुए हैं कि वो जो सेक्रेटरी साहब हैं वो तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे ना, जो प्रिविलेज मोशन मूव हुआ है वो उससे बिल्कुल बरक्स गुफ्तगू कर रहे हैं, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जो वो उनका जो जवाब है वो अपॉलोजेटिक नहीं है, वो तो बात को किसी और तरफ ले गए हैं कि ऐसे कर लें वैसे कर लें। जैसे जहाँ तक तो है ना नंबरों की बात, इनके पास भी स्टाफ मौजूद होता है, अगर MPA इनको पहले CM ऑफिस जाए, वहाँ से हम टेलीफोन कराएं या असेंबली से कराएं, इनका स्टाफ ऐसे ही वेरीफाई कर लेता है, असेंबली से पूछ सकता है, CM ऑफिस से पूछ सकता है कि जी फ़लाँ MPA है या नहीं है, ये तो आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं, ये तो जवाब नहीं बनता। लेकिन मैं इसमें ये ऐड ऑन जो असल चीज़ करना चाह रहा हूँ वो ये है कि पहले वो इस बात पे आएँ तो सही कि क्या इस तरह हुआ है, यानी वो तो इस चीज़ को तस्लीम ही नहीं कर रहे, तो हम इसको वाइंड अप नहीं कर सकते। जैसा आप बता रहे थे कि हम इसको करें, वो इस तरफ तो आए पहले, वो तो एक्सेप्ट ही नहीं करे कि ऐसा कुछ हुआ है। रईस नबीर और तो नहीं, मैं मेरी ऑब्जर्वेशन है कुछ में। अच्छा जी, इसमें ये है कि राय साहब 2 इश्यूज़ हैं, एक तो है फ़ोन ना सुनना, दूसरा है आपने पॉलिटिकल कमेंट्री की है, यानी 2 तरह की चीज़ें जो इस बहस से सामने आई है कि आपने रेफरेंस दिया कि जी मैं किसी काम से आया हूँ, आपने रेफरेंस दिया जी कि CM साहबा काम नहीं कर रही हैं, पॉलिटिकल कमेंट्री है वो आपका। जब आप अपनी पर्सनल लाइफ में होते हैं तो आपका हक है ये, आप अपनी पर्सनल लाइफ में लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, हम उसको रोक नहीं सकते, ना हमारा वो प्रीव्यू है कि हम उसको रोकें, लेकिन ऑफिशियल कैपेसिटी में आप ये पॉलिटिकल कमेंट्री नहीं कर सकते, किसी सूरत नहीं कर सकते, ये इलीगल है, रूल्स आपकी गिरफ्त करते हैं इसके बारे में अगर आप पॉलिटिकल कमेंट्री करेंगे, और वो भी इस यानी पंजाब असम्बली के प्रेमिसेस में, और एक मीटिंग चाहे वो इख्तिताम पजीर हो चुकी थी, आप उसमें आपको बिल्कुल अलाउ नहीं है कि आप पॉलिटिकल कमेंट्री किसी भी साइड की करें। ये नहीं है, हम मुख्तलिफ पार्टियों के लोग यहाँ पे हैं, यहाँ हमारे PTI के दोस्त हैं, मुस्लिम लीग नून के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, इस IPP के हैं, हम मुख्तलिफ पार्टियों के लोग बैठे हैं।
کسی کی حمایت یا مخالفت کا ایشو نہیں ہے. آپ نے جو پولیٹیکل کمنٹری کی ہے وہ ہم لکھ کے بھیجیں گے کہ آپ نے یہ کیا ہے. دوسرا نہیں، میں تو اس میں اپنی آبزرویشن لکھ کے بھیجوں گا کہ آپ کو عادت ہے کہ آپ پولیٹیکل کمنٹری کرتے ہیں، اور جو کہ بالکل آپ کی سروس جو ہے، رولز جو ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دیتے. نمبر 2، جو فون نہ سننے کی توجیہ، دلیل، لاجک آپ نے دی ہے وہ میرے خیال میں کوئی مناسب نہیں ہے. نرم لفظوں میں یہ جو ہے جیلی کالز کا سلسلہ، یہ پاکستان کے ہر انسان کہیں نہ کہیں اس سے متاثر ہوتا ہے. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے فون سننا شروع کر دیں، سننا بند کر دیں، یا اس حوالے سے کوئی اور اپنی اسٹریٹجی بنائیں. اس کے لیے آپ نے جو ہمیں کوئی فریم ورک دیا ہے جی ڈی ایس کر دے، یہاں پی ٹی آئی کے لوگ تو سی ایم آفس تک ایکسیس نہیں رکھتے. کوئی بھی سی ایم ہو، کوئی بھی دور ہو، جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کو اس حد تک ڈی ایس تک رسائی نہیں. ہم پچھلے دور میں اپوزیشن میں تھے، کوئی ہماری رسائی سی ایم آفس تک نہیں تھی. آج یہ اپوزیشن میں ہے، تو اس کا یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا، یہ ورکیبل نہیں ہے. یہ جو ہے کہ جی وہ آفیشیل چینل سے ہیں، اس کا آپ کو خود کرنا ہے. آپ ویب سائٹ پہ سارے ایم پی ایس کے نمبر ہیں. اگر آپ کو شک ہے کہ کوئی جیلی بن کے آپ کو کرتا ہے، آپ اس کا آفیشیل سائٹ سے نمبر ڈاؤن جو آپ نے خود کہا جی میرے پاس ہوں، تو میں خود میرے پاس اتنے نمبر ہیں اور میں وہ اپنے سیو کر کے، تو میری تو عادت ہے کہ میں ایفیشینٹلی رپلائی کرتا ہوں. تو یہ میکنزم آپ نے خود بنانا ہے. اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے رولز یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارا فون سننا ہے، میرٹ پہ کام کرنا ہے. اگر میں فون کروں، غلط کام کہوں، آپ رسپیکٹ کے ساتھ مجھے لاجک کے ساتھ کنوے کر دیں گے کہ آپ کا یہ کام پاکستان کے آئین، پنجاب کے قوانین کے اگینسٹ ہے، رولز کے خلاف ہے، تو یہ کام نہیں ہو سکتا. اگر میں میرٹ پہ کام کہوں گا تو وہ آپ کو حل کرنا ہے. یہ سادہ سی باتیں ہیں، یہ کوئی اتنی پیچیدہ نہیں ہے. اور سال ہر سال کی سروس میں یقیناً آپ ان سادہ باتوں کو سمجھتے ہوں گے. لیکن کال آپ نے سننی ہے، کام کریں یا نہ کریں وہ الگ ایشو ہے. اگر کسی میٹنگ میں آپ، یہ ہمارے رولز کہتے ہیں جو ہمیں پریویلیج حاصل ہے کہ آپ نے یہ کال سننی ہے یا کال بیک کرنی ہے. اب اس کے درمیان آپ کا ایکسپیرینس، اگر کسی نے جیلی کال کی ہے، وہ آپ کی جیلی کال ہمارا یہ پریویلیج بند نہیں کرتی، اس کو نہیں روکتی کہ جی اب وہ کال 1-2 جیلی آ گئی ہیں تو آپ یہ ہمارے رولز جو ہیں اس کو بدل دیں گے آپ کی وجہ سے. ایسا نہیں ہے، آپ کو خود میکنزم بنانا ہے. تو میری تو یہ آبزرویشن ہے کہ آپ کی فون کال نہ سننے کی بھی لاجک جو ہے وہ میری سمجھ سے بالا تر ہے. اور دوسری، یہاں روز آتے ہیں، یہاں ایڈیشنل آئی جی تک کو یعنی یہ ہوتی ہے، ہمارے سامنے آتے ہیں، اور انہوں نے کبھی یہ نہیں کہ ان کو بھی جیلی کال آتی ہوں گی، یقیناً آتی ہوں گی. میں یہ نہیں کہہ رہا جو آپ نے واقعات بیان کیے ہیں وہ میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن یہ جواز پہلی بار آپ کے ذریعے ہمیں ملا ہے کہ اس کے بعد آپ کال سننا بند کر دینا، کہ یا اس کو ہینگ اوور پہ لگا دیں کہ جی بس ٹھیک ہے. تو ایک تو میری یہ ہے کہ اس کے بارے میں ہم آفیشلز کو اطلاع کریں گے کہ آپ، یہ تو آپ نے مانا کہ کسی ریزن سے آپ کال نہیں سن رہے نا، ریزن آپ کی اپنی ہوگی لیکن آپ کال نہیں سن رہے، یہ اسٹیبلش آپ نے خود کیا. نمبر 2، پولیٹیکل کمنٹری کا کیس تو میں بالکل بھیجوں گا. رولز کا بھی میں آپ کو بھی، خالد صاحب، جو ہمارے رولز ہیں اس کے تحت یہ پولیٹیکل کمنٹری تو چاہے کوئی نون کا ہو یا پی ٹی آئی کا ہو یا پیپلز پارٹی کا ہو، یہ کسی افیسر کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی پروفیشنل جو اس کی ڈیوٹی ہے، جو پروفیشنل اس نے آ کے کسی بھی اسٹینڈنگ کمیٹی کو اپنی ڈپارٹمنٹ کے بارے میں اس نے آگاہی دینی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ پولیٹیکل کمنٹری کرے. قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے، وہ چاہے میری پارٹی کی حمایت میں ہو یا میری پارٹی کے مخالف ہو. جی کرے بات. اچھا سر، پہلے تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں. اگر میری وجہ سے معزز ممبران کی دل آزاری ہوئی، میں نے کہا کیونکہ وہاں پہ ایسے ایک جیسے رولے سے والی بات بن جاتی ہے اور سارے اٹھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں،
अगर सर इसको प्रॉपर कंटेस्ट करना है ना, पहले तो मैं माजरत करता हूँ अगर दिल आज़ारी हुई है कोई सर इस किस्म का, मैं सर कोई एक, मैंने कहा मैं सीनियर ऑफिसर हूँ और मेरा बिल्कुल मतलब ये हो सकता है कि मैं कहूँ जी जर्नैल का फ़ोन आया तो मैं अटेंड नहीं करता, यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा मैं ये कह सकता हूँ जी कि ये अल्लाह दिता MPA कहे तो ये होगा। अच्छा मैं बता, मेरा घर ज़मान पार्क में है ही नहीं सर, ये मैं अर्ज़ करता हूँ सर। देखिए बात क्या हुई, वो मैंने कहा सर क्योंकि ढेर सारे लोग थे और ऐसे क्रॉस टॉक हो रही थी, तो एक MPA साहब ने मुझसे पूछा कि आपका ऑफिस कहाँ पे है, तो मैंने कहा कि जो ज़मान पार्क है ना, इमरान खान साहब का घर जो है उसके बिल्कुल अपोजिट नहर के दूसरी तरफ हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब की कोठी है, उसमें है। अच्छा ना मेरा ज़मान पार्क में घर है ना मैंने ये बात की है। अच्छा इसी तरह की सर ये जर्नैलों वाली बात भी जो है कि मैं तो उनकी कॉल नहीं अटेंड करता सर, आई एम ए सेन पर्सन। अच्छा मैंने सर सर्विस भी की है, गोल्ड मेडल भी लिया हुआ है, 4 इम्तिहान पास किए हुए हैं, ये सीरत की किताब लिखी है। ये सर कोई बंदा अगर ज़रा सा भी हो तो वो ये बात करेगा। अच्छा MPA का भी सर ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा, मुअज़्ज़ज़ मेंबर ये मतलब सती साहब बाकी दोस्त जानते हैं, आते जाते रहते हैं, कभी सर ज़िंदगी में ये मसला नहीं हुआ। ये क्योंकि सर खड़े खड़े बात हुई, रश था, इसके बावजूद मैं माजरत करता हूँ दिल से, यानी अगर ये किसी की भी दिल आज़ारी हुई है। बाकी सर ये जो था ना कि अच्छा ये पॉलिटिकल कमेंट्री सर एक उसका हिस्सा मेरा रह गया कि एक तो ज़मान पार्क वाली बात इस तरह हुई कि आपका ऑफिस कहाँ पे है, तो मैंने कहा कि ज़मान पार्क के बिल्कुल अपोजिट नहर के दूसरी तरफ। अच्छा एक ये बात थी, कोई मैंने नहीं कहा कि ज़मान पार्क पे मेरा घर है और ना हमारा घर उधर है, ना कोई आना ना कोई जाना। दूसरी सर जो गुजारिश थी ना कि CM और उन पे चीफ सेक्रेटरी साहब पे, अच्छा उसमें सर ये 2017 की बात है सती साहब, ऐसी 2017 में सर कमेटी ने एक ऑर्डर पास किया था कि कोऑपरेटिव में कोटा रखें और वगैरह वगैरह। उसके बाद सर असेंबली चेंज हो गई। अच्छा मुझे आए हुए तो चंद महीने हुए हैं। अच्छा फिर इसी कमेटी में हम जब आए तो मैंने कहा जी आप बताएं क्या हुक्म है, तो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान ने कहा जी कि ये ऑर्डर है कमेटी का, बेशक 2017 में हो तो आप समरी भेजें। सर जो कमेटी ने हमें ऑर्डर दिया वो सारे की मैंने की कंप्लाइंस, कोई एक भी हमारे पास रिटर्न है सर, ये ऑर्डर था, ये कंप्लाइंस है, ये ऑर्डर है, ये कंप्लाइंस है। अच्छा एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर ने या दो ने पूछा भाई जी आगे क्या, मैंने कहा जी देखिए अब आगे करना है SNGD ने और मिनिस्टर, मैंने कहा जी हमारी चीफ मिनिस्टर जो है वो मिनिस्टर हैं, डायरेक्ट हम SNGD का हिस्सा है, तो मैंने कहा जी हमारे एंड पे जो था वो हमने कर दिया है, अब आगे जो है ना वो उन्होंने करना है। फिर सर बात हुई कि इसको चलाएं कैसे, हाउसिंग फाउंडेशन को मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी ये है कि कुछ लॉ में अमेंडमेंट्स करनी है। अच्छा मुअज़्ज़ज़ मेंबरान वर वेरी काइंड कि इन्होंने कहा जी कि आप हमें एक प्रेजेंटेशन दें, जो लॉ में अमेंडमेंट है हम वंस फॉर ऑल कर देते हैं और ये आपका मसला हल करते हैं ताकि सबको प्लाट जल्दी मिल जाए। वो सर प्रेजेंटेशन हमारी बिल्कुल रेडी है और हम आपकी बैक एंड कॉल पे है सर, बिलीव कर ले मुझे परसों से बुखार है, मैंने इंश्योर किया कि मैं कभी कोई एक मीटिंग सर बता दें जिसमें मैं लेट आया हूँ, ना आना तो दूर की बात है। सर हमें पता है कि आप लॉ मेकर्स हैं, आपने कानून बनाना है जिस पे पूरे 12 करोड़ बंदे ने अमल करना है, हमें जब भी अपना भी कोई मसला होगा तो हम आपके पास ही लेके आएंगे ना। ये यानी सर पॉलिटिकल कमेंट्री वाली बात है, ये सिरे से है ही नहीं सर। आगे चलें, आपने एक लफ्ज़ बोला है बीच में रुक गए हैं, अगर कॉन्टेस्ट करना है ये आपने कहा तो वो ज़रा वजाहत फरमाएं, आप करना चाहते हैं? नहीं सर मैं नहीं करना चाहता। नहीं आपने बात की है सर, मैं गुजारिश करता हूँ ना सर देखें ना, मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि सर हमारे ऑलरेडी सूबा बड़ा फंसा पड़ा है, बेशुमार मसाइल हैं सर, आपने हमें गाइड करना है, हमने आगे काम करना है। तो मेरी तो गुजारिश होगी कि सर मैंने एक दफ्तर में सर 40 अरब रुपए का गवर्नमेंट को मैं चूंकि आपने ये लफ्ज़ बोला हम वेलकम करेंगे, आप कॉन्टेस्ट करें सर, मैं उसके लिए पहले फिर हम भेजेंगे कि आपको SNGD में यानी इस पोस्ट से विड्रॉ किया जाए। कॉन्टेस्ट करने का ये होता है, पहले आप अपनी जो मौजूदा पोस्ट है उससे विड्रॉ होंगे, ये हम लिख के भेजेंगे अगर आप कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं। आप क्या उसको कहते हैं OSD बनाएंगे, उसके बाद आप शौक से यकीनन हम मेरिट पे करेंगे, कोई हमारा गुस्सा नहीं है आपकी तरफ। हम जब अपनी प्रोसीडिंग करते हैं, हम भी जब पहले दिन बैठे थे, हम जनरली अंडर ओथ होते हैं, ठीक है जी, जनरली यानी कि हम हर बार नहीं, आप तो एक बार आते हैं, हम अंडर ओथ होते हैं, हमारा कोई तासुब आपके बारे में नहीं है। लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश है कि आपने कॉन्टेस्ट करना है तो हम लिख के भेज देते हैं आपको, विड्रा करें सीट से और आप शौक से जो है वो अपना कॉन्टेस्ट करें, हम मेरिट पे आपकी बातें सुनेंगे। नहीं सर मैंने माजरत कर ली है, बावजूद इसके मैंने कहा कि वो देखना गलतफहमी एक है कि जैसे वो जनरल का मैंने कहा तो वहाँ ये समझा गया कि मैं जनरलों के फ़ोन नहीं अटेंड करता, और मैंने कहा जी अगर कोई बंदा हमें किसी कॉल कर दे जी मैं फ़लाँ MP हूँ तो हमें पता कैसे। और ये जो सर जो मेरी सजेशन है ये भी जस्ट एक रिक्वेस्ट है, यानी आप सर जो मैकेनिज्म हमें दें वो फाइनल है।
ہم اس کیس کو پینڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اس پہ معزز رائے منظور صاحب کی یہ تشریف، میں کہوں گا کہ آپ آج کی اس پریویلیج موشن کی کارروائی آج کی جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئی ہے، اور اس کو ہم اگلی میٹنگ میں مزید ڈسکس کریں گے، ہم ذرا آپس میں کر لیں گے ان کے جانے کے بعد، ٹھیک ہے جی۔ آپ کا بہت شکریہ، چائے پی کے آپ جو ہے وہ تشریف لے جا سکتے ہیں، مزید جو بھی اس کی کارروائی ہوگی وہ بذریعہ سیکریٹریٹ آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ میں جی آپ تمام کا بہت شکر گزار ہوں، تھینک یو ویری مچ۔ میں جناب چیئرمین میں جناب دے گوش گزار ایک سر لے آؤں، انہوں سوال کتنے نہیں ہوں وغیرہ وغیرہ، تو او احمد اقبال صاحب نے کہا یار یہ کوئی جواب ہے، ایم پی بیٹھے کمیٹی بیٹھے ہیں وغیرہ وغیرہ دا کی، اور وہ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੀ ਉਹਦੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਵਾਬ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ چیف آف اسٹاف بنے ہیں، ٹھیک ہو گئی ہے تو اب آگے جو ہے وہ نیکسٹ باقی تربیت برتا کرنی چاہیے جس کی ذرا ان میں سے ایک بندے کو کہیں ہاسپٹل جانا تھا یا کہیں کوئی پولیس کے بارے میں کون سی ہے، منصور صاحب علی، ہاں جی ان کو بلا لیں جو بھی ہے متعلقہ صاحب کے جو رسپونڈنٹ انہیں بلایا نا، ڈی پی او سرگودا آئے ہوئے ہیں انہیں بلایا، ایس ایچ او آئے پولیس کا کوئی نمائندہ نہیں آیا تھا، اس وجہ سے پینڈ کی گئی تھی، ٹھیک ہے، پرنسپل آئے ہیں، آئی جی آفس سے بھی نمائندے آئے ہیں اور ڈی پی او سرگودا آئے ہیں، لیکن یہ ایکس ڈی پی او سرگودا کے حوالے سے آئے، وہ آج کل ڈی آئی جی وہ نہیں آئے۔
कंसर्न एसएचओ का बयान लिया जा सकता है पुलिस डिपार्टमेंट हाँ मूव करानी है सर हमें मूव जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ज़रा मुझे अंदाज़ा हो जाए कि हमारी ज़रा खामोशी जी, ज़रा भट्ट साहब मेहरबानी फरमाएं। प्रिविलेज मोशन नंबर 10 है जनाब मंसूर आज़म MPA PP 72 की। तो इसमें इस प्रिविलेज मोशन के हवाले से जो ऑफिसर्स तशरीफ़ लाए हैं वो ज़रा अपना तारुफ करवा दें। सर मेरा नाम डॉक्टर असद मल्ही है सर, मैं DPO सरगोदा के तौर पे काम कर रहा हूँ सर। जी सर AIG लीगल IG ऑफिस की नुमाइंदगी करते हैं। ठीक है ठीक है। SHO लक्सी आप पीछे बैठें ज़रा पीछे बैठें। डॉक्टर ज़िशान हनीफ एडिशनल सेक्रेटरी पुलिस होम डिपार्टमेंट सर। जी ठीक है, थैंक यू जी। अच्छा जी, अब जनाब मंसूर आज़म साहब आप अपनी जो तहरीक इस्तेहक़ाक़ है उसको इस हाउस के सामने ज़रा उसको पढ़ दें। मैं हाल ही में वक़ू पज़ीर होने वाले एक अहम और फौरी मसला को ज़ेर बहस लाने के लिए तरीक़े इस्तेहक़ाक़ पेश करता हूँ जो असम्बली की फौरी दखल अंदाज़ी का मुतक़ाज़ी है। मामला ये है कि शुएब सिकंदर जो कि साबका SHO बलवाल सिटी हैं, अब SHO थाना लक्सियाँ तहसील कोट मोमन ज़िला सरगोदा में तैनात हैं, बेगुनाह लोगों को पकड़ कर तशद्दुद का निशाना बना रहा है। हल्के के लोगों के हवाले से जब मैंने पूछगिछ की तो इस पर मौसूफ ने मेरे साथ हतक आमेज़ रवैया इख्तियार किया और साथ ही फ़ोन बंद कर दिया। मैंने इसकी शिकायत साबका DPO सरगोदा को की, जिन्होंने मज़कूरा SHO के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के बजाय इसको किसी और थाने में बतौर SHO तैनात कर दिया। जनाब स्पीकर, मज़कूरा SHO के इस अमल से मेरी नहीं बल्कि इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान की तौहीन हुई है। लिहाजा इस्तदा है कि मेरी इस तहरीक को बाज़ाब्ता करार देकर मज़कूरा SHO के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाए। लिहाजा मेरी इस तहरीक को ऐवान में पेश करने की इजाज़त दीजिए। जी ठीक है। इससे पहले कि हम जिनके ख़िलाफ़ है उनसे उनका मौक़िफ़ जानें, डॉक्टर असद साहब आप ये जब वाक़या हुआ आप DPO थे? मेरा ख्याल आप नहीं थे, जो मुझे तहरीर से अंदाज़ा हो रहा है। जी सर, मैं उस वक्त वहाँ पे DPO तैनात नहीं था सर। नहीं थे। तो आप ये अपना मंसूर साहब ये किस डेट का वाक़या है, कोई इसमें मेंशन नहीं हो रहा? सर ये तकरीबन 10 मई के अराउंड का वाक़या है और डॉक्टर असद साहब जो हैं उस 10 मई जी 24 सर मैं अर्ज़ कर सकता हूँ उसमें डॉक्टर साहब जो हैं 4 अप्रैल। और आप कब इस पोस्ट पे आए हैं सरगोदा? मैं सर 2 मई को सर। नहीं आपको गलती लग रही होगी हम दोनों में, मैं इसीलिए मैं हाँ उससे 2-4 दिन पहले होगा क्योंकि सर मैं अर्ज़ करूँ सर 1 मिनट 4 अप्रैल का वाक़या सर। वाक़या 4 अप्रैल का है। अच्छा और आपने चार्ज लिया है 2 मई को। तो जब आपने चार्ज लिया आपके इल्म में ये वाक़या आया? जी सर, एक दिन मोअज़्ज़ज़ रुकन पार्लियामेंट साहब आए थे, उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया था और हमारी सर कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, कुछ वहाँ पे बाकी लोगों के सामने बात हुई, जिसमें मैंने उन्हें अर्ज़ किया कि सर जैसे सबका DPO साहब जो हैं ऑलरेडी उसको चेंज कर चुके हैं आपकी कंस्टिट्यूएंसी से एज अ काइंड ऑफ आपकी शिकायत के ऊपर। आपके आने से पहले वो चेंज हो चुके थे? हो चुका था जी सर, हो चुका था। नहीं ठीक है, वो ये मुझे जो समझ आ रही है वो ठीक कह रहे हैं कि उनके आने से पहले चेंज का मतलब ये नहीं कि उनको लाइन में भेज दिया था। चेंज का वो ये मतलब कह रहे हैं कि आपके हलके से SHO उठा के किसी और जगह SHO लगा दिया ना, ये वो कह रहे हैं। वो दुरुस्त कह रहे हैं, मुझे आपकी बातों से भी यही सेंस मिली थी। अच्छा जी,
آپ کی پھر کوئی منصور صاحب ان سے بات ہوئی جب سے یہ تعینات ہوئے ہیں اس ایشو کے اوپر؟ یہ میں باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا نا میں حقائق کو بیک گراؤنڈ سمجھنا چاہ رہا ہوں. اس ٹائم جس ٹائم اسپیشل کمیٹی کے سامنے ہیئرنگ ہوئی اس جب اس کا اچھا یہ پہلے اسپیشل کمیٹی کو ریفر ہوئی. ہیئرنگ سے پہلے ڈی پی او صاحب سے میری بات ہوئی. میں نے ان کو بولا کہ اس نے ڈس ریسپیکٹ کی ایک عوام کے نمائندے کی، اور بجائے اس کو سزا دینے کے آپ میرے ساتھ والے حلقے میں ایس ایچ او لگا دیں. وٹ کائنڈ آف اے میسج آر یو گیونگ؟ اور انہوں نے اینڈ پہ اس میں یہی بولا کہ جی چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد اس کے جب ہیئرنگ کی ڈیٹ آئی تو ان موصوف نے یہ سمجھا ایس ایچ او نے کہ اٹ از بلو ہم ٹو پریزنٹ ہمسیلف ان فرنٹ آف دس کمیٹی. جناب نے پیش ہونا یہاں پہ گوارا نہیں کیا اسپیشل کمیٹی میں. پھر اس کمیٹی نے ڈی پی او سرگودا کو نوٹس کیا کہ آپ اب اگلی ہیئرنگ پہ آ کے پیش ہیں، اس لیے ڈی پی او صاحب آ کے پیش ہوئے ہیں. یہ اس کا بیک گراؤنڈ. وہ اسپیشل کمیٹی میں ڈی پی او صاحب آئے پھر نہیں آج فرسٹ ٹائم ہے. آج فرسٹ ٹائم نہیں، اسپیشل کمیٹی کی ایک ہی ہوئی تھی ایک ہیئرنگ. اچھا اس میں نہیں تشریف نہیں لائے. ٹھیک. اچھا اب اس طرح ہے ڈاکٹر اسد صاحب کے ایس ایچ او کا ایشو تو بیسیکلی ایس ایچ او کا ہے نا، آپ کا ایشو نہیں ہے، لیکن یہ ساتھ جڑ جاتا ہے. آپ چونکہ ان کے باس ہیں کہہ لیں ذرا سادہ زبان میں، ٹھیک ہے. آپ اس ایشو کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ اسی لیے بلایا جاتا ہے جو جب بھی کسی ایس ایچ او ڈی ایس پی کے خلاف آتی ہے تو ڈی پی او کو یا ہائر آفیسر کو اس لیے بلایا جاتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے کہ وہ اس واقعے کو کس طرح سے دیکھتا ہے، کیا ایکشنز لیتا ہے اس واقعے کے اوپر. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایکسٹریم تک نہ جائیں. یہ کمیٹی ساری کی یہ کوشش ہوتی ہے، ہم چیزوں کو حل کرنا کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، نہ کہ اس کو خراب کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے. اس لیے ہماری نظر باس کے ایکشنز پہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اس واقعے کو کس طرح سے دیکھتا ہے. اب یہ ہے کہ آپ 4 اپریل کو آئے، اسپیشل کمیٹی میں آپ کو کال کیا گیا. کیوں جی منصور صاحب؟ وہ نہ کر رہے ہیں کہ مجھے کال نہیں کیا. جو ایک ہیئرنگ ہوئی اسپیشل کمیٹی کی، اس ٹائم اسپیشل کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے ہمارے جو خرم ورک صاحب. اسپیشل کمیٹی نے پھر نوٹس کیا کہ نیکسٹ ہیئرنگ آف ڈیٹ جو ہے اس کے اوپر ڈی پی او سرگودا، جو کہ آج اب فکس ہوئی ہے، وہ آئیں اور ساتھ اس کو ایس ایچ او کو لے کر آئیں. نہیں، آپ کو اطلاع نہیں تھی اسپیشل کمیٹی کی؟ اطلاع نہیں تھی جو اسپیشل کمیٹی کا بتا رہے ہیں. اس میں ڈیٹ کمیٹی نے جب فکس کیا اس بار تو اس کو اب اطلاع دی گئی نا ان کو، یعنی آج کے لیے بلایا گیا. اچھا اب جب آپ کے علم میں یہ آیا اور آپ نے یقیناً یہ کہا کہ جی مجھ سے پہلے ڈی پی او جو ہے ان کی اس کا تھانہ چینج کر چکے ہیں، اور منصور صاحب نے آپ سے کہا اس حوالے سے، تو آپ نے ان کو پوسٹ سے ہٹایا کیوں نہیں، جس کو کہتے ہیں ایک تھانے سے دوسرے تھانے کی طرف چلیں؟ پچھلا ڈی پی او کر گیا تھا. جب آپ کے علم میں آیا تو آپ نے ان کو کیوں نہیں لائن میں بھیجا جس کو آپ کہتے ہیں؟ سر 2 میٹنگز کا میں حوالہ دوں گا. سر ایک جو جب میں آیا تو جس کا سر بھی ذکر کر رہے ہیں کہ جس میں ہماری بات ہوئی اور یہی ڈسکس ہوا انفارملی کہ سر اس کو آلریڈی وہ چینج کر چکے ہیں، تو میرے حال سے ایشو ریزالوڈ ہے اور اگر کوئی فیوچر میں ضرورت ہوئی تو ہم کر لیں گے. معزز رکن پارلیمنٹ نے بھی کہا جی ایگری کیا. سر اس بات کو گزرے ہوئے 5 مہینے ہو گئے. 5 مہینے کے دوران سر مجھے کبھی بھی سر کی طرف سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں آئی، کسی قسم کا کوئی حوالہ نہیں دیا گیا. کل سر جس وقت ہمیں نوٹس موصول ہوا تو میں نے رکن پارلیمنٹ معزز جو ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا اور میں نے کہا سر ہمارا تو خیال تھا کہ یہ ایشو سیٹل ہو چکا ہے، آپ نے کبھی ذکر بھی نہیں کیا. ہماری ویکلی گاہے بگاہے ملاقات بھی ہوتی ہے، ڈیلی یا دوسرے دن فون پہ بھی کوئی میسیجز ہوتے رہتے ہیں، تو کبھی آپ نے اس حوالے سے تو کوئی کنسرن نہیں شو کی. تو انہوں نے کہا نہیں وہ ابھی تک ہے تھی کنسرن میری. تو اس کے فوراً بعد سر میں نے ان کو چارج شیٹ بھی کر دیا ہے، ریگولر ڈپارٹمنٹل انکوائری بھی ان کے اگینسٹ انیشیٹ کر دی ہے. سر تھینک یو سر. سر اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں، آر پی او سرگودا جو نئے آئے ہیں، ڈاکٹر صاحب کتنی دیر ہوگی ان کو؟ اس
सॉरी जी मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा। सरगोदा महीना हो गया उन्हें, महीना डेढ़ हो गया होगा सर। जो नए आरपीओ सरगोदा आए, क्योंकि मैं डीपीओ साहब से इस बारे में बात कर चुका था और इनका कोई पॉजिटिव रिस्पांस मुझे नहीं मिला, क्योंकि इनका बड़ा कैजुअली इन्होंने बोल दिया कि चलें इसको देख लेते हैं। उसके बाद मेरा इनसे बात करना बनता नहीं है, क्योंकि मैंने इस कमेटी के सामने अपना प्रिविलेज रखा है जो कि ब्रीच हुआ। नए आरपीओ सरगोदा आते हैं, मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट अ मंथ हो गया। नए आरपीओ सरगोदा को मैं मिलने गया और इस केस का मैंने जिक्र किया और मैंने बोला कि एक ऑफिसर के सामने, एक के खिलाफ प्रिविलेज कमेटी के सामने प्रिविलेज मोशन चल रहा है, तो उस बात का क्या जवाब बनता है कि आज भी वो एज एन SHO वहाँ पे सर्व कर रहा है। तो उन्होंने भी मुझे ये बोला कि मैं चलें ये देख लेता हूँ, मैं डिस्कस कर लेता हूँ DPO। अब अगर उन्होंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया, मैं बार बार अब ये तो नहीं कह सकता कि रोज़ आपके दफ्तर आके बोलूँ कि भाई उसका क्या किया। बात ये है कि एक अवाम का नुमाइंदा है, वो अपना चेयरमैन साहब, अवाम का नुमाइंदा जो है, अगर उसकी बात को फ़ोकियत नहीं दी जाती एक ऐसे अफसर के ऊपर जिस पे, और जुर्म जो इनका है वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मैंने मौसूफ को कॉल की कि ये बंदा बेगुनाह है, मुद्दई भी कह रहे हैं बंदा बेगुनाह है कि हमारा ये चोर नहीं है। मौसूफ मेरे साथ आगे से सही तकब्बुराना लहजे में कहते हैं कि जी आप गलत सिफारिशें करते हैं। मैंने कहा मैं गलत करता हूँ तो फिर इस पर FIR दो। बाद में जब मैं DPO, सबका DPO के पास पहुँचता हूँ, उनसे मैं ये मैटर डिस्कस करता हूँ, वो इनको बोलते हैं कि वो बंदा उठा दो, वो बेगुनाह है। तो पता ये चलता है कि मौसूफ ने बंदा पहले से उठा दिया हुआ है और रात के 1 बजे बंदे को वापस थाने बुला के उसको, उसके वालिद को कहते हैं कि आप MPA साहब को कॉल करके बोलें कि हम अभी छोड़ रहे हैं बंदे। अगर बंदा गुनाहगार था तो फिर छोड़ा क्यों, और अगर नहीं था गुनाहगार तो मुझे ये क्यों बोला कि आप गलत सिफारिश करते हैं, यहाँ बंदे को बिठाया क्यों। और ये SHO जब तक रहे बलवाल में, इनकी नेकेड करप्शन की दास्तानें रोज़ मैं बलवाल में हफ्ते में 2 दिन बैठता हूँ शहर में, रोज़ लोग मेरे पास आते कि पैसे लेते हैं, बेगुनाह लोगों को बिठा कर। इनका रवैया जब मैंने पूछा ये होता था कि जी मैं चेक कर रहा हूँ। कौन सा कानून आपको इजाज़त देता है बंदे को चेक करने का और 2-2 दिन थाने में बगैर गिरफ्तारी डाल के रखने का। अब इस सारे एपिसोड के बाद इनका आप रवैया देखें कि कमेटी के सामने पेश नहीं होते, आज तक वो बतौर SHO सर्व कर रहा है। और हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि आवाम का जो नुमाइंदा है उसकी बात की आपके लिए इतनी भी कदर नहीं है कि आप एक SHO को हटाने से कासिर है अनटिल प्रूवन गिल्टी, कि आप उसको लाइन नहीं हाजिर कर सकते। जी छीना साहब। तो सर DPO साहब ने सर लिखा है कि मैंने इसकी अपना चार्जशीट भी कर दी है सर, अभी फरमा भी रहे हैं सर, लिखा भी है कि SHO के खिलाफ चार्जशीट भी जारी कर दी है और महकमाना इंक्वायरी का आगाज़ भी कर दिया सर। एक बंदा जब अभी सर आप फरमा रहे थे एक ऑफिसर को कि अगर आपने कंटेस्ट करना है तो फिर आप एज ए OSD जाएँ, उसके बाद ही कंटेस्ट करेंगे सर। तो सर ये भी तो इधर भी तो यही कानून लागू होना चाहिए था ना कि जब चार्जशीट हुए और इंक्वायरी भी शुरू हो गई है तो वो लाइन हाजिर होता, बट ना कि वो SHO हो सर। वो तो अभी भी SHO है सर, और सर वो खुद ये तस्लीम करता है और आपके सामने तस्लीम करेगा कि मेरी MPA मौसूफ से हार्ट अटैक हुई है। वो हार्ट अटैक की वजाहत सर आप ज़रा उनसे खुद ही ले लेना सर। तो जी चेयरमैन साहब। सर थैंक यू वेरी मच सर। मेरी सबमिशन है कि ये जो वकूआ हुआ है वो अप्रैल में हुआ है मोजेस मेंबर पंजाब असम्बली के साथ, और अभी DPO साहब ने जो रिपोर्ट सबमिट करवाई है, ये जो कार्रवाई का आगाज़ किया गया है ये 30 अक्टूबर को हुआ है। तो सर इसमें पूरे ड्यूरेशन में मेरे ख्याल में डिपार्टमेंट ने इसको सीरियस ही नहीं लिया जो प्रिविलेज ब्रीच हुई है, और स्टिल वो 7 वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में एज अ SHO सर्व कर रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि सर एक जो मोजेस मेंबर पंजाब असम्बली है वो सिर्फ एक उसकी प्रिविलेज ब्रीच होती है तो उसको ट्रांसफ़र करके साथ
जनाब चेयरमैन साहब, मुझे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसमें तो जो प्रिविलेज ब्रीच अगर इन्होंने समझी भी है तो आशकशोई यही की गई है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी से इनकी से हटा के दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, साथ वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको सेम ओहदे पे लगा दिया गया है। तो मेरे ख्याल में ये एक मजाक ही है और हमारे लिए काबिल एहतराम है DPO साहब भी जो भी आए हुए हैं, जो भी पुलिस अफसरान हैं। मेरा क्वेश्चन है सर कि अगर IG साहब के साथ तो नहीं, अगर इनके किसी भी एक SP साहब के साथ भी इसका एटीट्यूड ऐसा होता SHO साहब का, तो क्या ये स्टिल एक साथ वाले उसमें SHO सर्व कर रहा होता? थैंक यू सर। अच्छा जी, अब इस तरह है कि अपना SHO सिकंदर सुल्तान, शुएब सिकंदर, इनकी चेयर ज़रा आगे कर दें और इनको वो हलफ दें। बस ठीक है, ठीक ठीक। ये पढ़े भाई। कुछ नहीं कहूँगा, अगर मैं झूठ बोलूँ तो अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हो। अच्छा, अब आप बताएं ऑनरेबल जो हमारे मंसूर आज़म साहब MP हैं, क्या बात हुई है? आप अपना मौक़िफ़ दें, बाकी बातें तो आपने सुन ली हैं। सर 4 तारीख को एक 15 पे कॉल मौसूल होती है। कंप्लेनेंट जो FIR का कंप्लेनेंट था वो खुद ही खड़ा है, उसने बताया कि मैंने लोगों के साथ एक बंदा पकड़ा है। 2 दिन पहले इसी बंदे ने मेरा मोटरसाइकिल चोरी किया था, वो बंदा भी सेम ड्रेस के अंदर था। उस दिन सर लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी थी, पूरा दिन उसी लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी में मसरूफ़ रहे PTI के हवाले से। मैं दिन में एंगेज नहीं कर सका, उस बंदे की तफ्तीश नहीं कर सका कि आया इन्होंने जो मुदई ने बंदा पकड़ा है या जो 15 पे पकड़वाया उसका क्या स्टेटस है। रात को जिस टाइम मैं थाने आया हूँ उससे पहले मुझे मोअज़्ज़ज़ MPA साहब की 2 कॉल्स मौसूल हुई थी कि ये बंदा जो है बेगुनाह है, आप इसको दे दें। मैंने उस टाइम इतनी गुजारिश की थी कि ये लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी में मसरूफ़ हूँ, शाम को जाके चूँकि मुदई ने खुद बंदा पकड़वाया है, मुझे एक दफ़ा आप चेक करने दें। शाम को जब मैंने आके उस बंदे की इंटरोगेशन की, मुदई भी बाज़िद था कि यही मेरा बंदा है। बाद में मुदई इटसेल्फ जिस टाइम खुद उसने आके बयान हल्फी दिया है कि ये मेरा चोर नहीं है, या उनकी पॉसिबली सर सेटलमेंट हो गई थी, उस सेटलमेंट की बुनियाद पर उस बंदे को मैंने रिलीज़ किया था। बंदा पकड़ा भी सर 15 की कॉल के ऊपर था, पब्लिक ने पकड़ के दिया था। 2 दिन पहले उसी जगह से मोटरसाइकिल चोरी हुआ था। जो मुझे मोअज़्ज़ज़ MPA साहब की कॉल आई थी उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कितने ही ऐसे कुछ बंदे होंगे जिन्हें मैंने मोअज़्ज़ज़ MPA साहब के कहने पर उन्हें इनके हवाले किया या ओबलाइज किया, या जो मैं कर सकता था मैंने किया। सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ और उस पर्टिकुलर इंसिडेंट की मिस हैंडलिंग की वजह से मोअज़्ज़ज़ MPA साहब नौबत यहाँ तक पहुँची। अच्छा, अब ये बताएं, पहले तो मुझे ये फ़ैसला करना है कि आप अपने उस जो हार्ट टॉक है या जो भी आपने किया है उससे पीछे हट रहे हैं, माजरत खाना आपका रवैया है, या कि आप कहते हैं आपने ठीक किया है और आपने ये केस लड़ना है इस कमेटी के अंदर? सर मैं 2 चीज़ें ना, मुझे पहले ये समझ आ जाए, उसके बाद मैं फिर आगे चलूँगा। सर मैं गैर मशरूत तौर पर अगर मेरी कम्युनिकेशन से दिल आज़ारी हुई है उसकी माजरत करता हूँ। इस माजरत का इजहार मैंने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ऑलरेडी MPA साहब के साथ किया था। चलें, ठीक है जी, ठीक है। अब ठीक है ना, समझ आ गई। अब मुझे ये लगता है कि जो MPA हमारे मंसूर आज़म साहब ने वाक़या जिस तरह बयान किया है, मेरी ये अपनी ऑब्ज़र्वेशन है कि ये वाक़या ऐसे ही हुआ है जैसे हमारे ऑनरेबल MPA ने कहा है। तो आपने जो एक सिर्फ मुझे थोड़ी सी वजाहत कर दें, MPA साहब भी हेल्प करें। आपने कहा जी वो जो मुल्ज़म है उसको पब्लिक ने पकड़ के हमारे हवाले किया। जी मंसूर साहब, ये दुरुस्त है कि पब्लिक ने पकड़ के किया? ये ज़रा मेरे लिए एक
नहीं सर, ये बिल्कुल गलत बयान नहीं, बस इतना बता दें कि ये दुरुस्त तो नहीं है कि बाकी पब्लिक ने, एक होता है हमारे भी हलकों में, यानी अगर पब्लिक इकट्ठी होके किसी ऐसे बंदे को पकड़ती है तो वो उसकी मीनिंग कुछ और बन जाती है। नहीं, गलत बयान नहीं कर जनाब। आप इसको साबित कर सकते हैं कि आपने पब्लिक आपने यहाँ स्टेटमेंट दी है कि पब्लिक ने पकड़ के दिया ना? सर 3:15 बजे के राउंड अबाउट 15 की कॉल चली। 15 की कॉल तो ठीक है, वो तो मुझे अंदाज़ा है आई होगी, यकीनन आई होगी। तो पब्लिक ने पकड़ के दिया, आपने यहाँ का? सर बिल्कुल, कंप्लेनेंट और कुछ पब्लिक के लोग थे, उन्होंने ही पकड़ा था। पुलिस ने स्पेसिफिकली रेड करके ये बंदा नहीं पकड़ा था। सर मैं आपकी जी अपना नबील साहब और फिर बिलाल साहब भी क्या? पब्लिक ने पकड़ा था, थाने कौन लेके आया था? पुलिस गई थी या पब्लिक के लोग ही लेके थाने आए थे? उसको 15 की कॉल हो गई थी, उस टाइम पुलिस ने मौके पे गई है, रिस्पॉन्ड किया था। मौके पे गई है, मौके पे गई थी। चलें ठीक है। सर विद योर परमिशन, SHO साहब, ये जो चोरी का मुकदमा था, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है चोरी का मुकदमा नामालूम के खिलाफ होता है, ऐसे ही है सर? तो क्या कंप्लेनेंट ने उसको नामजद किया हुआ था जो इसको पकड़ा है उसने? जी सर, हुआ ये था कि कंप्लेनेंट ने बाद में उसको नामजद किया है। बाद में नामजद किया है? जी सर। जब पकड़ के आपको दिया था तो उसको बाद में नामजद किया गया? क्योंकि सर वकूआ बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जिस वक्त वो पकड़ा गया उस वक्त वो नामजद नहीं था, चोरी का मुकदमा नामालूम के खिलाफ था, ऐसे ही है? ऐसे ही है। ऐसे मोहतरम MPA साहब के कॉल आने के बाद वो नामजद किया गया है या उसके पहले नामजद कर दिया? सर बाद में नामजद हुआ था। थैंक यू। जी बिलाल साहब, आप कुछ कहना? मैं भी सर इसी से रिलेटेड एक गुजारिश आपकी तफैल करना चाहता हूँ कि 381 का अगर कोई मुल्ज़िम माशाल्लाह हमारी पुलिस पकड़ती है तो बड़ी अच्छी बात है चोरी की वारदातों को चेक करने के लिए। अगर वो इनके कागजात में मुल्ज़िम था, ये कहते हैं 15 की कॉल पे पकड़ा गया उसको, आई कुडंट अंडरस्टैंड कि फिर उसने कहते हैं कि मुद्दई के कहने पे पकड़ा और मुद्दई के कहने पे इन्होंने उसको बयान हल्फी पे छोड़ दिया। क्या तफ्तीश का म्यार DPO साहब बताएंगे कि ये होता है? सर उसमें रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारा रिकॉर्ड में आपके साथ शेयर कर सकूं सर, बहुत ज़्यादा केसेस में जब कंप्लेनेंट रिजाइल कर जाता है तो हम चाहते हुए भी उस पर कुछ नहीं कर सकते सर। जब वही बंदा पहले एक शक का इजहार कर रहा है कि इस बंदे ने मेरी चोरी की है, तो डेफिनेटली वी आर बाउंड टू टेक हिम इनटू कस्टडी और उससे इंटेरोगेट करने के लिए। और जब बाद में उसको चीज़ें क्लियर आती हैं सर, हमारे नॉलेज में है कि हमारी जिस तरह की सोसाइटी है थोड़ी सी इनफॉर्मल चीज़ें चलती हैं कि लाइक जी 100 न्याय कर लो। यहाँ पे तो लोग वहाँ पे सर मर्डर के केसेस में भी है कि पहले खुद कहते हैं कि इसने किया है, बाद में कहते हैं नहीं इन्हें सानू न्याय दे देता है, तो नो ही इज़ नॉट आवर एक्यूज सर। तो इस तरह की सर चीज़ें चल रही होती हैं सर ऑन द ग्राउंड। जनाब जी आपको शुक्रिया जी। अच्छा सर, मेरी गुजारिश ये है कि जी ये DPO साहब फरमा रहे थे कि जी फरमा नहीं बल्कि उन्होंने लेटर लिखा 30/10 को चार्जशीट का, तो अभी तक उसका कोई रिस्पॉन्ड, नंबर 1। नंबर 2 ये है डॉक्टर साहब के नहीं 30/10 को लिखा ना, सेकेंड, हाँ 30/10 को अब लिखा है 5 माह के बाद जी। जब दूसरा DPO साहब, ये जो हमारी प्रिविलेज का नोटिस है ना, ये हमारी पंजाब असम्बली की तरफ से जाता है। अगर आपको किसी DIG का या IG का नोटिस आएगा तो आप 5-5 माह उसको अनअटेंड छोड़ देते हैं। ये आपने कहा जी कि हमें पता ही नहीं था, शायद ये सुलह होगी। जब ये अब दोबारा नोटिस आया तो मेरे इल्म में आई कि बात अभी पेंडिंग पड़ी है। दिस इज़ नॉट, मेरा मतलब ये कोई तरीका नहीं है कि जी जो 5 माह अनअटेंड पड़ी है तो आपने कहा जी कि शायद ये हो गया होगा। सर गुजारिश है मेरी ऑनरेबल चेयर से कि यहाँ पर जो सज़ा का क्राइटेरिया है या जो किसी को मुतमईन करने के लिए कि मैंने सज़ा दे दी है, वो यहाँ पर सिर्फ उसकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाती है। यानी चाहे उससे बेहतर थाना दे दें, वो कहते हैं देखें जी हमने तो उसको सज़ा दे दी है। जब तक कोई प्रॉपर सज़ा नहीं होगी किसी ऑफिसर को, तो तब तक ये जो बुराइयां हैं, सारी पुलिस कुर्बानियां भी दे रही है, उनके बड़े मतलब अमन अमान के लिए, बाकी चीज़ सिक्योरिटी के लिए बड़ा उनका रोल है। लेकिन जो उसके अंदर काली भेड़ें हैं, कम से कम उनको जब तक सज़ा नहीं मिलेगी, सिर्फ ट्रांसफ़र पोस्टिंग से तो मेरे ख्याल में मसला हल नहीं होना। और यही वजह है कि आज तक कोई SHO साहब जो वहाँ पर तैनात होता है, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल वो है, वो समझता है कि मैं इस थाने की हदूद का मालिक हूँ।
स्याह करूं सफ़ेद करूं, कोई मुझसे पूछने वाला नहीं है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि उसको पता है कि मुझे कभी कोई मैं अच्छा करूंगा या बुरा करूंगा मुझे सज़ा नहीं मिली, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा इस थाने से उस थाने चला जाऊंगा, वही डिस्ट्रिक्ट है वही डिवीजन है। तो मेरी ऑनरेबल चेयर से ये गुजारिश होगी कि पनिशमेंट, DPO साहब भी तशरीफ रखते हैं कि पनिशमेंट हो तो किसी को नज़र भी आए, पता भी चले कि इसने कुछ गलत किया है तो इसको इस चीज़ की सज़ा मिली है। शुक्रिया सर। गुजारिश ये है कि चूँकि ये अप्रैल से इशू जो है हाईलाइट हुआ है असम्बली में और स्पेशल कमेटी में भी गया, स्पेशल कमेटी में भी मैं मेंबर था उस वक्त, तो उस वक्त के हमारे DPO साहब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने उसमें बात की, लेकिन ये शुएब सिकंदर साहब चौथी पोस्टिंग है जो मैं देख रहा हूँ कि पहले ये SHO तरखाना वाला थे, फिर ये सेलेटोन में आए, उसके बाद ये भलवाल में गए, अब ये लक्सिया में हैं। लेकिन इनका एटीट्यूड और जो लोगों को पकड़ दकड़ वाला और मामला जो है ना इन्वेस्टिगेशन का एक ही जैसा पैटर्न ये अडॉप्ट करते हैं। इन्होंने कभी सबक नहीं सीखा कि किसी हाई ऑफिस ने इनको इंस्ट्रक्ट किया है, RPO साहब ने या DPO साहब ने अपने एटीट्यूड को चेंज करें या अपना जो पुलिसिंग का तरीकाकार उसको तब्दील करने की कोशिश करें। ये चौथा पुलिस स्टेशन है इनका, यहाँ पे भी कुछ मामला ऐसे हैं जो मेरे इल्म में हैं, लेकिन मेरी इसमें आपसे यही दरख्वास्त है कि मूवर की जो हम्बल सबमिशन है उसको अडॉप्ट किया जाए। सर आपकी जी एक और सवाल सर, जब MP साहब ने कॉल की SHO साहब को और इन्होंने कह दिया कि जी आप गलत बंदों की सिफारिश करते हैं, तो SHO साहब के थाने में सर क्या वो जो पकड़ के ले आई पुलिस या बंदों ने पकड़ा वो रिकॉर्डर था या सर आपने ये चेक किया था कि जब आपने MP साहब को ये कह दिया कि जी आप गलत, वो पूछ रहे हैं कि वो रिकॉर्ड याफ्ता बंदा था? क्या आप गलत, क्या वो रिकॉर्डर था? रिकॉर्ड याफ्ता था वो बंदा जिसको हैं? नहीं था। अच्छा चल सर, ये जो कह रहे हैं कि मैं डिनाई करता हूँ, दैट मीन्स ही इज ट्राइंग टू कंटेस्ट। हाँ नहीं मैं करता हूँ इस पे बात, इस पे इस तरह है कि अभी आप इस मीटिंग के दौरान कायम हैं कि आप गैर मशरूत माफ़ी चाहते हैं MPA साहब से? सर मैं गैर मशरूत तौर पर माफ़ी चाहता हूं। चलें ठीक है। अच्छा, अब आपको शुएब सिकंदर साहब, आपको अंदाज़ा है कि आपके इस रवैये की वजह से आपके ऑफिसर DPO यहाँ मौजूद हैं, IG ऑफिस से AIG साहब आए हैं, सिर्फ आपकी इस जो हरकत है या कंडक्ट है उसकी वजह से उन ऑफिसर्स को भी यहाँ जवाबदेही आपकी वजह से हो रही है। आपको अंदाज़ा है इस बात का? सर मुझे इस चीज़ की शर्मिंदगी है। अब इस तरह है कि जी इसका फ़ैसला इनके बाद हम आपस में बैठते हैं। चूँकि आपने अनकंडीशनल अपॉलॉजी की है तो अभी ये हमारी डायरेक्शन अभी आप तक DPO साहब और आप तक भी सर अभी हम थोड़ी देर बाद डायरेक्शन दे देंगे इस बारे में कि शुएब साहब के साथ क्या हमारी रिकमेंडेशन है, ऑब्जर्वेशन क्या है कमेटी की, तो आप तशरीफ़ लेके जा सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जाते जाते नहीं मेरा ख्याल छोड़ दियो सर, एक लास्ट सर मेरी छोटी सी एक गुजारिश है, एक छोटी सर अगर आप इजाज़त दें सर। छोड़ सर may I sir one last word sir, if with your permission, if you allow sir। मेरा ख्याल है जी चेयरमैन साहब ने बात ठीक कर दी है। वैसे देखा जाए तो भाई अगर देखिए सर सेकंड, जिस तरह आपको MPA साहब मिले थे, हमने बहस नहीं की आपसे। जिस टाइम आपको MPA साहब मिले थे ना 3 महीने 4 महीने पहले, आपको ये इशू तभी रिजॉल्व कर देना चाहिए था, ये आज नौबत ना आती। तो इसलिए अब चेयरमैन साहब ने बात कर दी, ख़त्म होगी, आप प्लीज़ अब मेरे को बात ख़त्म करें जी। इतना जो है ना मैं अभी बताता हूँ। अच्छा, अब इस तरह है, देखें मैं आपको ना एक ये आइंदा भी हमारे पास प्रिविलेज आनी है ना, माशाल्लाह अल्लाह ज़िंदगी तंदुरुस्ती रखे। एक फ़र्क डालें कि एक बंदा कोई माफ़ी नहीं मांगता यहाँ आके,
اور ایک بندہ معافی مانگتا ہے. 2 رویے ہیں. جو معافی مانگتا ہے میں نے اس لیے ان کو بھیج دیا ہے. جو اپنی بات پہ ضد کرتا ہے اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. اور جو معافی مانگتا ہے, میں یہ نہیں کہتا اس کو معاف کر دیں, یہ بالکل نہیں میں کہہ رہا. میں نے صرف ان کے سامنے اس لیے اپنی آبزرویشن نہیں دی ہے کہ ادروائز لوگ معافی مانگنا چھوڑ دیں گے. اگر میں ابھی کہتا انہوں چک کے ادھر مارو, وہ دے ذہن چاہنا سی کہ یار میں تو معافی بھی مانگ لئی, غیر مشروط معافی مانگ لئی, تو پھر یہ بھی نہ کریا کریے جیسا سانو چک کے پرائیں سٹنا ہے, تو پھر اسی وہ بھی معافی بھی کادے لی منگیے. ٹھیک ہے نا جی. میرے ذہن میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا ایک ہی وقت میں, جو شاید میں نہیں کہتا کہ آپ کے ذہن میں نہیں ہوتی, میرے ذہن میں ہوتی ہیں کہ اس کو ہم نے, اس کمیٹی کو ہم نے عزت وقار کے ساتھ آگے لے کے چلنا ہے. اب اگر اس کو ہٹانے کا بھی کہنا ہے تو ان کے سامنے نہیں, میں نے اس لیے ان کو بھیج دیا کہ اگر اب ہٹانا ہے, ادھروں بندہ کہے جی مینوں معاف کر دیو, ادھروں اسی کہیے جی انہوں ہٹا دیو, تھوڑا سا میچ نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا جی. سر اس میں نہیں سن لیں ہٹانے کی بات پہ جو سن لیں, جو کمیٹی کہے گی وہ ابھی میں نوٹ کروا دوں گا, وہ ہٹانے کی ہم اپنا بھیج دیں گے جی. سر ایک ہاں نہیں بند رکھ.
ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ सबमिशन मेरा इस पे और जितने बच्चे अप्लाई करेंगे अगर वो 30% से कम होंगे वो हर सूरत दाखिल होंगे। ये आप उनके साथ टेकअप करें जब तक वो हैं। जी सर। तो ये जो है ना ये हक उनका मारा जा रहा है। इस पे आपके तो बहुत सारे बच्चे वहाँ चले जाएंगे, फ्री पढ़ लेंगे। ये आप से जो फीसों आप यूनिवर्सिटियों को देते हैं वो से बच जाएंगे आप। इसमें सर 100 बच्चे जी होने हैं तो उनमें से 30 वर्कर के होंगे और उनका अगर वो 35 है तो उनके दरमियान मुकाबला होगा बजाय इसके कि वो टोटल में से सर हम कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटी के उनको नहीं तो बुला सकते? वो बुलाएंगे अभी मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, ये बहुत बड़ा काम है, इनको ऐसे कैसे जाने देंगे। नीचे ऐड पे ग्रैंड अभी तो उन्हें साथ देना है, वो बगैर एग्रीमेंट के बैठे कैसे हैं? ये सर जो ईयर वाइज अगर सर ग्रैंड वो बात क्लियर होगी ना, ये सारा फ्रॉड है, ठीक है ना। वो मुझे पता है इसलिए मैंने ये पूछा था, ठीक है ना। ये वो करते ही हैं कि वो अपना तारुफ करा दें ज़रा। अस्सलाम वालेकुम जी। शहजाद हबीब गिल, दी देन SC ऑपरेशन मैपको रेमियार खान। SC ऑपरेशन? जी सर। अच्छा जी जी। आप सर असद हमाद, डायरेक्टर कमर्शियल मैपको, हेडक्वार्टर मुल्तान। जी ठीक। एक्शन मोहसिन नज़ीर, एक्शन सादकाबाद।
एक्सियन सादिकाबाद सादिकाबाद से। सर मोहम्मद इदरीस APS to CO मैपको। ठीक है जी। रईस नबील साहब, सबसे पहले तो आप ज़रा पढ़ दें, अपनी मूव कर दें इस मोशन को। मैं हाल ही में वकूअ पजीर होने वाले एक अहम और फौरी मसले को ज़ेर बहस लाने के लिए तरीक़े इस्तकाक पेश करता हूँ, जो असम्बली की फौरी दखल अंदाज़ी का मुतकाज़ी है। मामला ये है कि हालिया, ये क्योंकि पुरानी है सर, तो इसलिए हालिया बारिशों की वजह से बिजली की वोल्टेज और ट्रांसफार्मर्स ख़राब होने के मामला ज़्यादा हो गए हैं, और अवाम जिनसे वोट लेकर हमें इस मौज़े ज़बान का हिस्सा बनने का एज़ाज़ हासिल हुआ है, वो अपने इस किस्म के मसाइल के हल की उम्मीद के लिए हमारे दर पर आते हैं। तो इस सिलसिले में मैंने एक्सियन सादिकाबाद और SE वाबडा रहीमिया ख़ान से मोरखा 2, 5, 6 और 8 अगस्त 2024 को मुख्तलिफ़ अवकात में रब्ता करने की कोशिश की। कॉल्स और मोबाइल्स पर पैगामात भी भेजे, लेकिन मौसूफ़ अफसरान की जानिब से पैगामात मिलने के बाद भी किसी किस्म का जवाब मौसूल ना हुआ, और ना ही इनकी तरफ से मुझसे रब्ता किया गया। जनाब वाला मसाइल हल करना तो दूर की बात, हमारे ज़िले के मज़कूरा अफसरान बात सुनना और पैगामात मौसूल होने के बाद इनका जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझ रहे, जिसकी वजह से बहैसियत मेंबर ना सिर्फ मेरा बल्कि पूरे ऐवान का इस्तिकाक मजरू हुआ है। बहुत शुक्रिया। ये आपकी बेसिकली जो है प्रिविलेज, ये एक्सियन सादिकाबाद और SC रहीम यार खान के हवाले से है, दोनों के या एक के हवाले दोनों की, दोनों एक्सियन और SC दोनों पे थी। तो ये दोनों मौजूद हैं मेरे ख्याल में। SC साहब कौन है? जी सर, ये इनको दें जी, इनको दें ज़रा, ये पढ़ दें जी आप हलफनामा। जवाब पर मेरे को नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट। जवाब लेके आए हैं? सॉरी, जवाब को लेके आए हैं? आपका रिटर्न रिप्लाई है सर? रिटर्न रिप्लाई तो नहीं लेके आए। रिप्लाई नहीं लेके आए सर, ये पहले रिटर्न रिप्लाई लेके आएंगे, वो प्रेजेंट होगा, उसके बाद प्रोसीड होगा। चीफ एसको को भी शायद आपने बताया, मैपको नहीं, चीफ नहीं आया रहे हैं, लेकिन चूंकि बड़े अरसे बाद ये पहले भी 1-2 बार पेंड हो चुकी है, तो आपका मैं सेक्रेटेरिएट को भी कह रहा हूँ कि आइंदा से ये हमारे एजेंडे में वो रखें जिसका जवाब रिटर्न आ चुका हो ना, अदरवाइज़ आइंदा के लिए मैंने कह दिया है। तो आज चूँकि ऑफिसर्स आ गए हैं, तो ये आप ज़रा हलफनामा पढ़ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह ताला को हाज़िर व नाज़िर जानकर कहता हूँ कि जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अगर मैं झूठ बोलूँ तो अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हो। जी शुक्रिया। और इसी तरह एक्सियन वाबडा जो है मुतलका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह ताला को हाज़िर व नाज़िर जानकर कहता हूँ कि जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अगर मैं झूठ बोलूँ तो अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हो। अच्छा जी, पिछली मीटिंग में हमने ये एजेंडे पे रखा था, तो मुझे वो ड्रॉप करना पड़ा इस वजह से कि आप में से या SC साहब ने या एक्सियन साहब ने असम्बली सेक्रेटेरिएट को ये कहा कि हमारी ये मोशन ना रखें क्योंकि हमारी मूवर से बात हो गई है। ये मैसेज आपने दिया था एक्सियन साहब? जी सर, मेरी रईस नबील साहब ऑनरेबल से इनके वहाँ पे घर ही मेरी मुलाकात हुई थी, तो जो चीज़ें थीं वो हमारी डिस्कस भी हो गई थी, और उसमें कुछ ट्रांसफार्मर्स का इश्यूज़ था, वो भी हमने दे दिए, वो इंस्टॉल भी हो गए। और इन्होंने साहब ऑनरेबल MPA साहब ने कहा कि ठीक है, आपकी हाज़िरी हो गई है, तो इसको बाद में हम देख लेंगे। जी अपना नबील साहब, ऐसी को बात हुई?
सर पिछली दफ़ा भी मैंने यही सबमिट किया था, जब मैंने प्रिविलेज मोशन मूव की थी मेरे साथ एक्सियन साहब जो हैं इन्होंने रब्ता किया था, ये मेरे पास वेरी नेक्स्ट डे आए थे। लास्ट टाइम जब हम यहाँ बात कर रहे थे तो उस वक्त ये मैसेज मिला था कि मैंने मीटिंग में आने से मना कर दिया है कि मेरी बात हो चुकी है एससी से, या चीफ, मैं क्लियर कर देता हूँ सर, वजाहत कर देता हूँ कि चीफ मेपको से मेरी गालबन बात हुई है या एससी से। ना ही मेरी सीईओ मेपको से कोई बात हुई थी, ना ही मेरी एससी वापडा से बात हुई थी। एक्सियन की हद तक मैंने पिछली बार भी बताया था कि मेरी उनसे मुलाकात भी हुई, बात भी हुई। जो एससी साहब हैं उन्होंने मुझसे जिस दिन से मैंने प्रिविलेज मोशन मूव की है उन्होंने मेरे से कोई बात नहीं की, मेरे पास उन सारी डिटेल मौजूद है। कल उन्होंने मुझसे पहली दफ़ा उस प्रिविलेज मोशन के बाद एससी साहब ने कल मुझे मैसेज किया है, गालबन ये 2 महीने या 3 महीने जो गुजरे हैं। लेकिन मैंने ये कतई तौर पे नहीं कहा था कि एससी साहब ना आएँ या सीईओ साहब ना आएँ, मेरी उन दोनों ऑफिसर से कोई बात नहीं हुई। एक्सियन की हद तक मेरी बात ज़रूर हुई थी। चलें ठीक है जी। एससी साहब आपने क्यों रब्ता नहीं किया? सर असल में मैं 6 सितंबर से एससी नहीं रहा, मैं एक्सियन था, मेरे पास लुक आफ्टर थी एससी की। तो उसके बाद सर फिर मैं राब्ते में ही नहीं रहा एससी के कामों से, तो वो मेरी गलती है, उसकी मैं माजरत करता हूं। नहीं, आप कहीं भी चले जाएं, अगर आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन मूव होती है सर इस पंजाब असम्बली के हवाले से, तो वो जहां आप होते हैं ना वहां होती है, राइट सर। और फिर आप पाकिस्तान में कहीं भी चले जाएं, राइट वो आपने जवाब देना है। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि जी मैं उस सीट पे नहीं था सर। ये तो रोज़ हमारे सामने केस आते हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो होती रहती हैं। जवाब दे वो बंदा होता है जिसके खिलाफ यहाँ पे कोई कंप्लेंट आती है, कोई प्रिविलेज मोशन आती है। तो आपने ये खुद से ही सोच लिया कि अब मैं नहीं हूँ तो मैंने जवाब नहीं देना। सर बस उसकी माजरत सर, आइंदा ऐसे नहीं होगा इंशाल्लाह। तो मैं सब थोड़ा सा मुझे ना इसका 1-2 चीज़ें आपको बताने दें तो ज़रा पिक्चर क्लियर हो जाए कि ये सिर्फ इस तरह नहीं था कि टेलीफोन ना उठाने पे मैं कभी भी प्रिविलेज मोशन ना देता। एससी साहब को सर मैंने पहला मैसेज किया था 13 अगस्त को, उनका ये सामने मौजूद है मेरे पास सारा, उनका कोई मुझे जवाब नहीं आया। फिर मैंने उनको उस वक्त ये एससी थे, ठीक। फिर मैंने इनको, अभी इन्होंने बताया ना कि सितंबर में गए हैं, हाँ। मैं अगस्त का बता रहा हूँ सर। 15 अगस्त को मैंने सर कॉल की है, ये मौजूद है मेरे पास, इनका कोई जवाब नहीं आया, कोई कॉल बैक नहीं आई। फिर मैंने 19 अगस्त को इनको कॉल की, 4 दिन बाद, कोई मुझे इनका जवाब नहीं आया। मैंने इनको उसके बाद फिर एक मैसेज किया, मुझे उसका भी कोई जवाब नहीं आया। 19 अगस्त के बाद मैंने फिर जब ये प्रिविलेज मोशन डाला है तो ये कल एससी साहब के मौजूद है मेरे पास मैसेज नवंबर में जाके सर। अब एक्सियन साहब का भी मैं आपको बता देता हूँ, वो आप सिर्फ देख लें। और उन दिनों मेरे हलके में आधी ज़्यादा जगहों के सर ट्रांसफार्मर्स जले हुए थे, बिजली बंद थी, तकरीबन एक हफ्ता भी बस्तियों की बिजली बंद रही है। और आपको भी पता है कि मेरा हलका जो है वो कच्चे से लिंक्ड है, लॉ एंड ऑर्डर पे सबसे सेंसिटिव हलका है, और पूरी रात वहाँ पे एक हफ्ता बिजली बंद रही है। अब सर ये आप एक्सियन साहब का मैं आपको बता दूं, तो आए थे मेरे पास ज़रूर, मैं उनकी माजरत जैसे आप कहेंगे हम देख लेते हैं। उनको सर पहला मैसेज किया हुआ है 9 अक्टूबर को सर मैंने उनको कॉलिंग करना शुरू की हैं, और उसके बाद ये देखते जाएं सर आप 9 अक्टूबर, फिर 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, कोई एक भी कॉल ना उठाई गई है, ना मैसेज का जवाब दिया गया है। प्रिविलेज मोशन के बाद एक्सियन साहब भी मेरे साथ राब्ते में हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं सर अगर एक महीना या 20 दिन अगर हल्के के एक्सियन और एससी दोनों ना टेलीफोन उठाएं ना मैसेज का जवाब दें, और एक हफ्ता बस्तियों की बिजलियाँ बंद रहें, तो वहाँ पे जो औरतें, बुज़ुर्ग, बच्चे, उनके क्या हालात होंगे। बारिशें भी हो रही हों और 10-10 दिन बिजलियाँ बंद हों, ये कंडीशन थी वापडा की वहाँ पर। इस वक्त आप कहाँ हैं? सर इस वक्त मैं कंस्ट्रक्शन में हूँ सर, एक्सियन कंस्ट्रक्शन रहीम यार खां। जी जनाब चेयरमैन, एक मिनट ज़रा जी विद योर परमिशन सर। जैसे मोज़ेज़ रुकन असम्बली ने अभी जिक्र कर रहे थे सर, पर्सनल ऑब्जर्वेशन मुझे नहीं पता बाकी मोज़ेज़ अरकान की क्या है। मैपको का रवैया सर टुवर्ड्स स्पेशली जो मोज़ेज़ रुकन पंजाब असम्बली हैं उनके साथ बहुत ईमानदार है, ना उनका फ़ोन उठाया जाता है और ना कोई काम किया जाता है। पता नहीं ये समझते हैं कि शायद सिर्फ MNA साहिबान के लिए हैं, ये MPA साहिबान शायद ना पब्लिक के रेप हैं और ना उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इनका रवैया, हालांकि हमने कोई ज़ाती नहीं लगवाने होते, लोगों के मसाइल होते हैं, ग्रीवेंसेस होते हैं, उनको एड्रेस करना होता है। और सर मेरा पर्सनल रईस नबील साहब उस वक्त नहीं थे, मैंने ख़ुद भी सर चीफ मैपको को कॉल करने की कोशिश की, कॉल भी की,
उस वक्त और सिंस देन अक्टूबर में मैंने कॉल की है 8 अक्टूबर को, और आज तक मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया उसका। तो सर इनका मैं क्लियरेंस भी चाहूँगा, डीजी साहब भी बैठे हैं हमारे, कि पता नहीं हम जो अरकान पंजाब असम्बली हैं, हमारी प्रिविलेज बनती है इनकी तरफ या नहीं बनती, हम इनको कुछ कह सकते हैं या नहीं कह सकते, पता नहीं। इस पे क्लियरेंस दे दें इनको भी हो जाएगी, हमें भी हो जाएगी इसकी। सर बिल्कुल इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि पंजाब असम्बली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत तमाम टूल्स जो हैं सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे एप्लीकेबल होते हैं। सिर्फ प्रिविलेज मोशन ऐसा टूल है जो फेडरल गवर्नमेंट पे भी एप्लीकेबल होता है, और जो हमारा प्रिविलेज एक्ट है 1972 का, ये पूरे पाकिस्तान पे एप्लीकेबल है, और उन फेडरल गवर्नमेंट पे भी उसी तरह अप्लाई होता है, और प्रिविलेज मोशन भी उसी तरह अप्लाई होती है। अच्छा जी, आपने क्यों फ़ोन कॉल का ना सुनी, ना जवाब देना पसंद किया, ना किसी मैसेज का? सर रैस साहब की कॉल्स भी मैंने सुनी, रैस साहब ने आगे अगर कोई बंदा बताया कि उससे रब्ता करें, वो भी मैं करता रहा हूँ। अगर कोई कॉल मिस हुई है तो मैं पहले हलफ दे चुका हूँ कि मैंने दानिस्ता मिस नहीं की, और ना ही मेरी सर ये तबीयत है, और ना ही आइंदा फ्यूचर में ऐसा होगा। अगर कोई कॉल मिस हुई है किसी वजह से भी तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ, आइंदा इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। कह रहे हैं कि कोई कॉल मिस नहीं की, तो मैं आपको रिकॉर्ड कहते हैं तो दिखा देता हूँ। सर दानिस्ता मैंने मिस नहीं की। 15-20 दिन तो नहीं होता जी। कॉल भी है, मैसेज भी है भाई, अगर देखें ना एक दिन के नहीं, आपने कोई कॉल बैक की है रईस साहब? ये मेरे पास सर मेरी रईस साहब से काफ़ी दफ़ा बात हुई थी, तब भी बारिश के दिनों में भी इनके कंज्यूमर्स के, इनके वोटर से भी मेरी बात होती रही। वोटर की यहाँ नहीं बात हो रही ना, कंज्यूमर से। सर मैं बात कर रहा हूँ कि ये आपको मैसेज करते रहे, कॉल करते रहे, आपकी कोई बात हुई, आपने कॉल बैक किया? सर मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि सर मैं बिल्कुल कॉल करता रहा हूँ। अगर किसी कॉल को मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर सका या उस वक्त पिक नहीं कर सका तो मैं हलफ मैंने पहले भी दिया कि मैंने दानिस्ता नहीं ऐसे किया जी, और ना ही आइंदा करूँगा। सर ये ना एक बात करेगा सर, ये व्हाट्सएप की कॉल जो हैं ये मैसेजेस भी सीन हुए हैं, तो इसका मतलब है जब सीन होता है तो अगला बंदा देख के पढ़ के आपको रिस्पांस नहीं कर रहा। सर वो ये तो हमारे मुअज़्ज़ज़ रुकन ये फरमा रहे हैं, इतनी लंबी लिस्ट है सर, उनके पास भी उनका मोबाइल है सर, वो भी इसी तरह दिखा सकते हैं कि जी ये 13 तारीख को कॉल आई, मैंने 14 को वापसी उनको कॉल की, 15 को कॉल आई, मैंने 16 को उनको कॉल की, 17 या 18 19 को। सर कोई तो रिकॉर्ड वो भी दे देंगे ना कि जी मैं इनको, हाँ जी वो दिखा दें सर, कोई ऐसी बात नहीं, हमने कौन सा दुश्मन तो सर मेरी ऑनरेबल एमपीए साहब से ना तो बहस है और ना ही मैं कोई प्रूव करना चाहता हूँ। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि मैं माजरत करता हूँ अगर मैं इनका कोई जो भी फ़ोन नहीं रिसीव कर सका, और आइंदा मैं गारंटी देता हूँ कि ऐसी शिकायत इनको नहीं होगी, ना ईवान को शिकायत होगी ये। और मज़ीद मैं इनके घर जाके, इनके डेरे पे जाके भी सारी बातें वजाहत भी करूँगा और माजरत भी करूँगा। जी देखें जी, इस तरह है कि आपको इल्म होना चाहिए कि अगर हम अपनी ऑब्जर्वेशन सिर्फ भेज देना कि इस कार्रवाई को हमने चलाना है सर, और जब तक ये कार्रवाई चलेगी आपको इस सीट से आपके जो भी हेड ऑफिस होता है वहाँ भेज दिया जाए, तो ये यहाँ से हम प्रोसीडिंग का स्टार्ट लेते हैं ना कि आपको इस सौदे से फ़िलहाल जब तक ये प्रोसीडिंग चलती है आप गिल्टी साबित होते हैं नहीं होते हैं सर। लेकिन आपने चूँकि माजरत कर ली है सर, की है, ठीक है ना जी, जी सर। अभी उसका फैसला रईस नबील साहब ने करना है, राइट जी। आपने अपनी अनकंडीशनल एक माजरत की है, अपॉलॉजी की है, तो अभी हम अपना वो राइट जो है कि हम आपको ये अपनी ऑब्जर्वेशन रिकमेंडेशन भेजें कि इनको औहदे से हटा दें, थैंक यू सर, वो अभी हम नहीं कर रहे, इसलिए कि जब तक रईस नबील साहब जो मूवर हैं सर उनकी मौक़िफ़ ना आ जाए या उनकी फ़ाइनल वो ना आ जाए, तो रईस साहब आप अगर आप रईस नबील साहब, मेरी ये एक राय है, मेरी राय है, इसको हम पेंड करते हैं, मेरी राय है, अभी मैं फ़ैसला नहीं सुना रहा, और उस दौरान आप भी देख लें कि आपने इनकी जो गैर मशरूत एक किस्म की माजरत की है उसको बड़े दिल के साथ माफ़ करना है, या इनको अभी समझते हैं कि नहीं इनको सज़ा मुराद यही कि इनको हटा दिया जाए या आगे इसको फर्दर हम लेके चलें, ये फ़ैसला आपने करना है। अगर मेरी राय है कि आज की सिटिंग में हम इसको
पेंड कर लेते हैं, और अगला अभी हम पेंड कर रहे हैं, अगली जब बारी आएगी तो फिर हम इस पे आपके कहने के मुताबिक जो भी डिसीजन ये कमेटी लेगी फिर उस पर आगे हम जो है ना फर्दर इस पे अपनी। मेरी सबमिशन है कि क्योंकि ये तो हैं जो ऑफिसर तशरीफ लाए हैं, इनके खिलाफ डायरेक्ट मोअज़्ज़ज़ रुकन असेंबली की है, तो जैसे इस कार्रवाई होती है इस कमेटी की साथ, उसमें इनके सीनियर्स भी होना चाहिए। नहीं, क्योंकि सीनियर्स इनके कोई नहीं आए। कौन है आजकल? सर जामगुल मोहम्मद जाहिद साहब हैं, तो सर वो तो- आउट ऑफ कंट्री हैं सर। अच्छा जी सर। कब से? सर 4 तारीख से। 4 वापसी कब है, कौन अंदाजा? सर कल रात है शायद 8 की चलिए रात। नेक्स्ट में हम उनको बुलाएंगे, ठीक है ना जी, नेक्स्ट में उनको नोट कर लें कि जी सर जी ठीक है जी। फिर रईस बिल जी, इसको रईस साहब, पेंड कर फिर रहे हैं, इसको पेंड कर रहे कर हैं, देते हैं, ठीक है। इसको हम पेंड कर रहे हैं। रईस साहब आप पे है, उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी की है, आप देख लें इसको, अगली मीटिंग में फिर हम इसका फैसला करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाँ अच्छा, एक और है आपके बारे में, 1 मिनट, आज हमने नहीं रखी चूँकि हमारे मूवर नहीं थे जिन्होंने ये मूव की थी। अदनान डोगर साहब हैं, तो वो नहीं, लेकिन वो है किसके बारे में, मैपको में किसके बारे में? वो आपके बारे में है। जी सर। लेकिन आज हमने वो नहीं रखी, इसलिए आप कुछ जवाब लेके आए हैं? जी सर, जवाब सबमिट भी हुआ है, मैं लेके भी आया हूँ सर। लेकिन टेक्निकली ये है कि चूँकि राना शहबाज साहब आज हमने वो रखी नहीं हुई, तो उस पर हम कार्रवाई नहीं कर सकते। हम अगली मीटिंग में आप वो, चूँकि मूवर आज नहीं थे, जिसका मूवर ना हो उसको फिर हम उसको नहीं रखते हैं, तो आप अगली मीटिंग में हम आपको इतला करेंगे, आप तशरीफ़ लाइएगा ताकि उस पर भी हम अपनी कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ाएं। आपका बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सर। सारे जो ऑफिसर्स आए हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू रासन बिल साहब, शुक्रिया। थैंक यू सरदार साहब जी। नहीं, ये सबमिट की हुई है कि अभी दे रहे हैं आप? असद 15/10 का कहाँ, क्या किसको सेक्रेटेरिएट में किसको भेजा था? असेंबली में किसको एड्रेस करके भेजा? आमिर हबीब साहब को। चलें ठीक है जी, ठीक, चेक कर लेंगे। अच्छा जी, अब आज की इस मीटिंग का बाज़ाब्ता इख्तिताम, और कल इंशाअल्लाह ताला जो बाकी एजेंडा है उसके साथ हम कल 2 बजे हम मीट करेंगे जी।